Who's Romil Moses? दो टाइप का बिजनेस होता है. एक होता है ग्लैमरस बिजनेस और एक होता है नॉन ग्लैमरस बिजनेस. तो अपनी कला से दिल जीतेंगे हर हाल में, हर काल में. आई हैव दिस वन पॉलिसी वेयर आई हैव अ 24 आवर मॉर्निंग पीरियड. ये मेरे लिए बहुत काम करता है. ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है. 24 घंटा छाती पीट पीट के रोने का. यू नो, आई स्टार्टेड मीटिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल. You know, I'm doing Ambani's house, Tata's house, and you know, 5-star hotels. वो distinct forte को ढूंढो and then have the guts to choose a profession in that forte. 4 pillars पे इंडिया बनाता हूँ. First is महामहेश्वरी, okay, महासरस्वती, महालक्ष्मी and महाकाली. 4 pillars, 4 मजबूत pillars पे इंडिया सोने की चिड़िया बनाता है. However, there is an entire world of unglamorous businesses when you have really hustled and you have a solid background, and when you go to the market to say that, you know, this is my talent and I can show you that talent, I think there are a lot of good people there. Who's over there? Namaskaram. So here we have somebody so special. He amazes each and every person he meets. Something which we will bring on the show. Sir, who's Romil Moses? Hi. Firstly, Kamala, thanks for inviting me. Pleasure, sir. First, let me answer the straight question. Romil Moses is Kamala's big fan and an old friend. So right from the time you'll be surprised, I still have your name saved in my phone as DJ Kamlaks. Okay, I remember the times when you were hustling as a DJ. Uske baad you got into choreography. You hustled into choreography, made a mark there. Then you got into corporate events. You did my corporate events. Then you made a mark there. Then you went into weddings. Then you became a motivational speaker. Man, what a journey. So I'm a big fan. Okay, and God bless you and keep doing that. So अब तेरा बहुत लाल हो गया, अब मेरा लाल करता. ठीक है. So who's Romil का ना 2 टाइप का क्वेश्चन होता है. एक तो यार कमलाक ने बुलाया पॉडकास्ट पे, तो कोई तो भी होगा, बड़ा आदमी होगा. Okay, so let's first address the big man. Okay, so Romil Moses is the founder director of Garnet Group of Companies. Garnet Group of Companies में हमारा 4 verticals है. Okay. So the first vertical is we curate interiors for luxury hotels like Oberoi's, Taj, Marriott, Six Senses. Okay, curate homes for the super HNIs like Ambani's, Munjaz, you name the top cream. We curate sales gallery sample apartments for people like Rustamji and Tatas and stuff like that. So that's what Garnet does. We are a one-stop shop for interior solutions. Then I have a sculpture studio where we custom build art. Everything from figurative art to mythological art to abstract art to devotional art to wall murals. So here I'd like to tell you that we have commissioned the new national emblem on top of the Parliament building of India that was inaugurated by Prime Minister Modi. We also did the biggest mural on the Thane Municipal Corporation building of the Shivaji coronation ceremony. We are doing corridors for all these devotional spaces. Apart from that, we do abstract arts for all of these fancy homes that we do. So that's as far as the art vertical is concerned. Then I have a motion pictures vertical where so in my life, by the grace of God, I've meeting the most amazing people. All of these people who own 5-star hotels, who are these super HNI people, have a fabulous story, and they are always wearing a mask. All of us wear a mask, and we have to. But behind that mask is an amazing person, and behind that amazing person is an amazing story. I want to capture those stories, so that's why the motion pictures is there. And then, of course, I had a foundation that was running for a very long time, which is purely dedicated to the empowerment of the youth of the country. Okay, it empowers in terms of education, it empowers in the sports fields. Okay, we'll talk about that maybe a little later. So that's what Romil is when it comes to the first question, कि Romil कौन है? Okay, now let's come to the second part, कि Romil कौन है? अभी this is my favorite part. Okay, so Sonakshi Sinha का भी शादी हुआ. So she's my client, so I had gone for the wedding.
ओके अच्छा। सो वहाँ पे वो ऐसा 30-40 paparazzi ऐसा वो बैठा था एंट्रेंस पे ही with the cameras and everything and all the actors actresses were coming in and they were shooting okay and so I went in my sports car and my sports car has like a nice roaring sound and like an open top. So everybody thought, यार अभी sports car आया ये आया तो कोई तो भी आया है. Then they started shooting. When I went there and I got off, they started shooting. Kach. They started shooting. And then as I went past them and I was going in, one of the cameramen says, ये कौन है यार? You know, and that's the question I love. That's the question I love कि कौन है ये? You know, so there is the second Romel कि कौन है ये? Okay, who's that Romel? A very average school background, very lower than average college background कि मुश्किल से पास हो गया, not great at sports, very mediocre looking guy, lot of inferiority complexes क्योंकि गांव से आने वाला आदमी जब शहर में आता है तो there is a lot of inferiority complex. Okay, so much inferiority complex. So there is that guy who has no contacts, okay, who has no skills, okay, who comes from a small village with so much inferiority complex, and then eventually he becomes this Romel that I just spoke about. Okay, so now that is what makes this podcast interesting, and I'm sure your audience are going to be inquisitive कि ये क्या था and what was that journey. So with so much of diversity in what you're doing, from interiors to art, motion pictures, and the foundation which you're having, what is that makes you tick? What are the things which adds value to Mr. Romel Moses? So the journey started very simply. So अपन फास्ट फॉरवर्ड करते हैं उसको, जस्ट इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स देखते हैं. ओके, तो 12वीं पास हो गया तो तभी अक्ल नहीं होता है, तभी तो इंटरनेट भी नहीं था अपने टाइम पे. तो देन यू नो सब अपना फ्रेंड्स इंजीनियरिंग में जा रहे तो चलो अपन भी इंजीनियरिंग में जाते. तो आई वेंट इनटू सिविल इंजीनियरिंग. ओके, व्हाइल इंजीनियरिंग आई रियलाइज कि नहीं बॉस ये तो अपना फील्ड नहीं है. आई मीन आई एम नॉट हैविंग फन हियर. अभी कर रहा हूँ इंजीनियरिंग बट माई पेरेंट्स हैड टेकन अ लोन एंड यू नो वी केम थ्रू डिफिकल्ट बैकग्राउंड. सो आई सेड नहीं खत्म तो करना पड़ेगा. ओके, सो आई फिनिश्ड इंजीनियरिंग बट व्हाइल डूइंग इंजीनियरिंग देयर इज टू बी दिस डिजाइन सब्जेक्ट्स इन सिविल इंजीनियरिंग व्हिच आई यूज्ड टू रियली लाइक. तो मैं ऐसा दोस्तों का शीट भी बनाता था, मेरा शीट्स भी बनाता था. आई यूज्ड टू एंजॉय डूइंग दैट. यूज्ड टू एंजॉय डिजाइन द ड्राइंग्स एंड द यू नो प्लानिंग. सो देन व्हाइल इंजीनियरिंग आई रियलाइज कि ठीक है मेरा थोड़ा ये डिस्टिंक्ट फोटे मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरे को ना डिज़ाइन में पसंद मज़ा आ रहा है, मेरे को क्रिएशन में पसंद आ रहा है. तो मैं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है. सो देन नाउ आई हैड टू कन्विंस माई पेरेंट्स. नाउ यू कैन इमेजिन कंजर्वेटिव पेरेंट्स जिन्होंने बेटे को इंजीनियर बनाया और अभी बेटा बोलता है कारपेंटर बनने का. तो आई टोल्ड माई पेरेंट्स, तो माई फादर सेड एक काम करते चलो, ही रिमूव्ड अ बॉटल ऑफ ओल्ड मॉन्क एंड सेड चल दारू पीते. ओके, हाँ चल दारू पीते एंड सवेरे उठ के फिर बात करते. इफ यू स्टिल फील दैट यू वांट टू बिकम अ कारपेंटर देन you go ahead. So then we had and then so that was called carpentry पहले ना. Carpentry क्या है ना, I am using a very glamorous word. क्या we curate interiors. Curate interior बोलेगा तो क्या ये पैनल बनाने का है, सीलिंग बनाने का है, इलेक्ट्रिकल का काम करने का है, एयर कंडीशनिंग करने का है, फ्लोरिंग लगाने का है. Okay, that is curation of interiors. Yeah, okay, that's the fancy word. But otherwise क्या कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार बनने का है. Okay, तो my father was like चल दारू पीते. And then we had drinks and my father अपना कॉलेज में स्टैमिना तो सॉलिड था. तो we had a good time and then in the morning I said नहीं I still want to I want to become a contractor. I want to go into the interior line. So he said okay fine, go ahead but try and become the best one. You know, so that was the first inflicting point. अभी डिसाइड कर लिया और मार्केट में घुस गया तो अपने को कोई इमीडिएटली जॉब तो देने वाला नहीं है. तभी सिविल इंजीनियर्स को जॉब नहीं होता था. सो नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. इधर नदी है, हम लोग 4 दोस्त लोग इधर बैठ के बीड़ी पी रहे और वो सामने ना अंबानी का फैक्ट्री बन रहा था. ओके, अंबानी का तभी पातालंगा में फैक्ट्री बन रहा था. ओके, एंड देन हम लोग ऐसा देख रहे हैं और देन वो पास कर रहे हैं. देन आई एम आस्किंग कि यार क्या क्या कर रहा है ये. तो दूसरा आदमी बोलता है यार कोई तो भी रिलायंस करके है, ये लोग फैक्ट्री बना रहे हैं. तीसरा आदमी बोलता है हाँ यार लेकिन इधर क्यों बना रहे हैं. देन आई एम लुकिंग एट दैट फैक्ट्री. ओके, और अंबानी. ओके, आई सेड ओके मेरे को ना वो क्या बनने का. ये कंप्लीट टर्निंग पॉइंट था एक. Okay. That is that guy I want to become, definitely not this guy, you know. So इसीलिए जब भी 4 लोग के साथ बैठते हैं ना तो थोड़ा संभाल के बैठने का, क्योंकि लोग बोलते हैं ना 4 लोग क्या बोलेंगे. 4 लोग कभी भी अच्छा नहीं बोलते, 4 लोग कभी भी बुरा ही बोलते हैं. मतलब वो शाहरुख खान बेचारा ऐसा 55 के एज में मस्त 6 पैक वगैरह बना रहा है. ओके, स्टेरॉइड दे रहे सब. अरे तू इधर वड़ा पाव खा रहे, तेरा इतना बड़ा पेट है और शाहरुख खान स्टेरॉइड्स. ओके, वो विजय मल्ल्या मस्त ऐसा वो यॉट पे लड़कियों के साथ ऐसा फोटो विटो निकाल रहा है, दारू वीरू पी रहा है.
ठरकी है रे, विजय मल्ल्या ठरकी, तेरे को काम वाली नहीं पूछती है. Okay, and विजय मल्ल्या ठरकी. Okay, so that was the turning point. Okay, I said कि मेरे को ना, I want to do something. So I just packed my bag and I left. I said इधर से दूर जाने का मेरे को, and I went straight to Delhi. Okay, and वहाँ पे 3,000 रुपए का नौकरी लिया मैं. Okay, in this line that was making in this company that was making furniture. Okay, अभी 3,000 रुपए में क्या, घर भी नहीं आता है, तो झोपड़पट्टी में रहता था मैं. Okay, and then I was hustling. Okay, but hustle in a way. The first thing that I took was I bought a scooter on an EMI. Okay, लोग बोलेंगे यार 3,000 रुपए का पगार है तो स्कूटर क्यों ले रहा है, गर्लफ्रेंड घुमाने के लिए चाहिए क्या? आई सेड नहीं. ओके, इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, इट इज एन इन्वेस्टमेंट. क्यों? मेरा बॉस मेरे को एक काम बोलता था, फट करके आता था मैं, चल दूसरा काम बता, फट करके आ, वही बस में धक्के खाएगा तो नहीं होएगा वो. ओके, सो it increased my productivity 5 times. I grew so fast. Next year I bought a Fiat. Okay. Third year I bought a 118 NE. Fourth year I bought a Contessa. Okay, so that was the growth. The simple thing I was asking is, boss, my owner wants to make money. My owner is in this business. How can I exponentially increase it? You just keep asking yourself this question. Okay, and I exponentially grew. And then what happened? Now this was now a fourth inflicting point. I realized that my business, that business of interiors, was very unorganized. Okay, बहुत अनऑर्गेनाइज धंधा था. Okay, वो चड्डी बनियान में कारपेंटर काम कर रहा है, रूमाल बांध के पेंटर पेंट कर रहा है. तो आई सेड यार, why does it have to be so unorganized? Let's make it organized, you know. And then I was just married, and शादी में पैसा खर्चा हो गया था. I just had a daughter, तो पैसा नहीं था, बैंक में 10,000 रुपया था. But I told my wife कि यार, you know, I think I want to do a business and I want to do it very differently. So my wife said, see, we have 10,000 rupees in the bank. How further can we fall? इससे ज्यादा तो गिर नहीं सकते, but do what you want. If you believe in it, just do it. So I was lucky to have her support there. And then I started this company. I started with 10,000 rupees and 1 employee. And ये ऐसा uniform day 1 से. So today also. So this is the uniform which you carried from there. Yes, from day 1 till today. From the director to the person who, the office boy in my office, everybody wears this uniform. Yes. Does the colors keep changing? So this is the red that we are trying now because we are rebranding, but otherwise it's bottle green. Okay. So uniform, safety helmets. I said we'll do it very, very systematically. अच्छा, अभी कंपनी तो चालू किया, काम कौन देगा? So तभी ना पवई में, this coincidentally, this very hotel that we are sitting in, पवई में रोडास होटल बन रहा था. I went to सुरेंद्र हिरानंदानी, somehow contact निकाल के, and I told him, sir, आपका होटल में बनाएगा. तो he like first, he's a very sweet guy, he first smiled. He said, तू एक आदमी है, क्या कर लेगा? I said, you know, and then I started sketching, I started showing him, this is what we'll do, this is what we'll do, and he's just watching. One good thing about successful people is that they can judge people. So he says, Romel, you know what? I like you, but I'm not going to risk. पूरा होटल वगैरह तो देगा नहीं मैं तेरे को. आई विल गिव यू 1 room, show me what you can do. Okay, so he gave me 1 room to do a sample, and I did it so well that eventually he gave me the entire hotel. And he was so sweet that because I had no money in the bank, he gave me a 25 lakh rupee check without a bank guarantee. When you have really hustled and you have a solid background, and when you go to the market to say that, you know, this is my talent and I can show you that talent, I think there are a lot of good people there. You know, so that's where then my Garnet was formed, and then from Garnet, then it grew. Even today, I don't have a marketing department. Surendra Hirandani is still my client. I don't have my marketing department. Any job that I do it so well that they tell 10 people that this company is good. Okay, so that's how we grew organically. Okay, and then when it came to art in the interiors, you know, either there was a page 3 artist, या एकदम वो झोला लेके घूमने वाला आदमी था. It was a very unorganized sector. So again, I said, okay, virgin industry hai, blue ocean strategy, let's start an art vertical in a very organized platform. So I took these amazing artists from JJ School of Arts, gave them a platform, and we started creating art sculptures in stone, in metal, in carbon fiber. And then slowly that business grew, you know, and then you know, I started meeting a lot of interesting people. You know, I'm doing Ambani's house, Tata's house, and you know, 5-star hotels. And then you realize that you meet the most amazing people, and that's when I started the motion pictures company to capture the stories of these beautiful people. So then the third company was formed, and the foundation has always been on. I never did a foundation from the CSR angle.
Okay, I was always that carpenter का बेटा carpenter नहीं बनता है, painter का बेटा painter नहीं बनता है, तो who's going to do all of these interiors, so I always got into skill development, and then after Modi ji came, then he talked about Skill India movement and Make in India. So it was lucky for us, so that's like the whole story of how the whole company grew. So again, Kamlaks, दो टाइप का बिजनेस होता है. एक होता है ग्लैमरस बिजनेस और एक होता है नॉन ग्लैमरस बिजनेस. ओके, ग्लैमरस बिजनेस में ऑफकोर्स फेम है, शो ऑफ है, ये है, ओके, लाइक डिजाइन, ओके, एक्टिंग, what you do, anchoring, or even mentoring. You're on stage. It's a glamorous business. Okay, of course there is a lot of hard work behind it. Okay, so a lot of people get drawn to glamorous businesses. However, there is an entire world of unglamorous businesses which are very, very lucrative. And the whole idea ki abhi jaisa interior design, for example, is a glamorous business. Okay, of course there are trained interior designers, there are good interior designers who are in the profession, but of late you would have seen ki every film star's housewife is becoming a interior designer. Okay, every fancy housewife of a businessman is becoming an interior designer. इतना होलसेल में इंटीरियर डिजाइनर्स बन रहे. ठीक है, डिजाइनर बन रहे, बनाएगा कौन? ये पत्थर लगाएगा कौन? ये सीलिंग करेगा कौन? You understand? So that's the non-glamorous part of the business. So I started, and then I remember what Steve Jobs had said. Steve Jobs had said that ideas are worth nothing unless executed. True. Execution is $1 million business. Okay, that's what Steve Jobs said, which is so true. कि आप चाय की टपरी पे बैठो तो उधर वो चाय की टपरी पे भी पब्लिक आपको बिजनेस का आइडियाज देता है. क्या रे ये करने का, रे बहुत पैसा है इसके अंदर. अरे लेकिन करेगा कौन? वो चाय पी के फिर वो वड़ा पाव खा के निकल जाता है. उसके आगे. So execution, getting down to execution. So I got down to execution, and over a period of 20 years I built the best teams of masons, the best team of POP karigar, the best team of the painters, best teams of air conditioning, electrical, ऐसा अच्छा team. Guided and trained them also. Guided, constant training, constant फोकस. हमारा टैग लाइन है, अपनी कला से दिल जीतेंगे हर हाल में हर काल में. टैग लाइन में हिंदी में क्यों लिखा? क्योंकि मेरे कंपनी में 100 लोग को इंग्लिश आता है, बाकी 4000 लोग को इंग्लिश नहीं आता है. वो कारपेंटर है, वो पेंटर है, उसको भी पता होना चाहिए कि यार अपन राजस्थान में काम कर रहे हैं, गर्मी है, ये है, इन ह्यूमन कंडीशंस है, लेकिन साला काम अच्छा करेंगे. बिकॉज इवेंचुअली फॉर 15 years डाउन द लाइन पीपल आर गोइंग टू कम एंड से वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पेस. तो अपनी कला से दिल जीतेंगे हर हाल में हर काल में. Whether it was COVID, whether it is inhuman conditions, whether it is anything, no matter what price the client has given us, the quality has to be top of the line. So it took me 20 years to collect this entire team, and that's why I focused on building. Even art is focused on sculpting the piece. I have foundry, so उसमें foundry में वो cast होता है, which is an art which is dying out. Now I am starting terracotta art, okay, which is a dying art. So इससे क्या होता है? Dying art forms are also getting reviving back. Plus that huge employment. ये बहुत बड़ा. अभी तो हमारा 4000 families है. I want to take it 10,000 families. That's so you have 4,000 employees with you. Yes. But extremely skilled people whom we have collected over a year. So इसलिए अभी वो परिवार बन गया. It's like a family, So I and then of course the Make in India, Skilled India, everything has come in, and I usually tell youngsters ki be very careful of what you really want to choose. Glamour, Weimer, वो सब आ जाता है. Okay, but पहले अपना basic तू skill तैयार करना, कुछ हाथ से बनाना सीखना. Something you have to learn. Get a skill. And don't look at the glamour part of the business. Glamour is the most difficult actually. Okay, to become an actor like you or a choreographer like you, I'm sure तूने भी बहुत धक्के खाए. I don't know how many studios you must have visited, how many rejections you have faced, how much you must have worked on your art form, to get there, each word. But I'm saying that so you can choose between the glamorous part of a business or a non-glamorous business, and yet be successful in both. That's a very, very good way of putting it. Yeah. So, India is a price-sensitive market where people, though however rich, they want to work on a certain budget. इतने में करना है. How do you manage that part of it? So, Kamlaksh, इसमें दो चीज़ है. Okay, which I'm sure you are also doing it consciously or unconsciously. एक होता है कि अपना positioning क्या है. Remember, we are in a country which has a massive population. Now, one of the biggest country in the world. Okay.
everybody is hustling, okay, but people are busy being mediocre. Okay. Okay. How do you kill this mediocre? Yes. So it is up to you. Like, I have a lot of people in this business, okay, who don't care whether that finish is perfect, wo line teda hai, ye hai, okay. It starts from within. That Right. you strive for perfection. The very fact that you built such a beautiful physique, जरूरत नहीं था ना. तू भी तो वड़ा पाव खा सकता था, मस्त, you know, enjoy your drinks, enjoy your things. So it comes from within. You said नहीं, I am going to look fit. I'm going to do yoga. I'm going to do this. Okay. There is a lot of mediocrity. Okay. So first position कि तेरे को mediocrity में business करने का है, तो फिर यही होने वाला है कि अरे यार वो बाजू वाला इतने में दे रहा है, अरे चाइना से तो आधे रेट में आ रहा है. But there is a luxury segment. Okay. There is a segment where people value what you are giving. Okay. But वो segment में आने के लिए पहले तो बहुत सारा घिसना पड़ता है. It took me, 15 years to get there. Okay. You have to master the art. Okay. It take usually कोई भी आर्ट मास्टर करने के लिए, कोई भी, वेदर यू आर अ क्रिकेटर, वेदर यू आर अ पॉडकास्ट, वेदर यू आर अ डांसर, वेदर यू आर दिस, टिपिकली साइंटिफिकली इट इज बीन प्रूवन दैट 10,000 घंटा जब वो काम करता है ना आदमी कॉन्स्टेंटली विथ फुल फोकस, तो वो जीनियस बनना चालू होता है. फिर उसके बाद ऐसा कमलक्ष से थोड़ा सिर्फ पैर भी हिलाएगा तो ऐसा लगता है अरे यार क्या क्या स्टेप मारा है. यू अंडरस्टैंड, यू सी दिस ब्यूटीफुल डांस फॉर्म वेयर यू सी दैट अरे सिर्फ ऐसा नजर हिलाता है एंड पीपल आर लाइक यार क्या स्टेप था. सो वो जीनियस लोग हैं. It takes time to come to that genius. So once you come to that genius, and then you know your positioning. So I position myself as luxury. Okay, ये इंडिया का top 1% है. They are looking for the best. They really want good stuff. Okay, so you position yourself correctly, and then now this is एक positioning हो गया. अब इसके बाद second part आ गया. अब तू client के पास जा रहा है. The biggest mistake that people make is कि वो लोग product चिपकाते हैं. Okay. प्रोडक्ट चिपका दे क्लाइंट के ऊपर. अपना क्या प्रोडक्ट लाइन में ये 100 रुपए का है, 200 रुपए का है, 500 रुपए का है, 500 रुपए का प्रोडक्ट चिपकाने का कोशिश करता है सब सेल्स वाले. दैट इज व्हाई आई डोंट हैव सेल्स पीपल इन माय ऑफिस. ओके, बिकॉज यू हैव टू सिट इन द क्लाइंट सीट. ओके, द क्लाइंट का उसका रिक्वायरमेंट समझ ले पहले, हाँ, उसका प्रॉब्लम समझ ले पहले, व्हाट ही वांट्स. उसको स्कोडा चाहिए या उसको एंडेवर चाहिए या उसको मर्सिडीज चाहिए, समझ तो ले पहले. ओके, एंड देन यूज योर एक्सपर्टीज टू solve his problems and tick all his boxes, and then tell him, sir, I have 3 products for you. So this is product number 1, इसका ये advantage है, product number 2 इसका ये advantage है, product number 3 इसका ये advantage है. You choose and respect the client's intelligence. वो intelligent होता है, वो बराबर choose करता है. So bottom line, I feel India is not a price sensitive market. In India, people are looking for value, and you have to create value for people. So it's just a matter of rephrasing the question. Yeah. So, as an entrepreneur, as a business person, there are a lot of ups and downs. कभी दिन अच्छे रहते, कभी दिन बुरे रहते, कभी suddenly you're on a spike and suddenly the dip happens. Sure. How have you managed your times when you thought कि यार बहुत difficult time है? How do you come up? And for people who are listening, what do you think that's the method to really rise from where you are on the pits? How do you do that? Sure. So, of course, everybody goes through. People like to think कि यार कमलक्ष का जिंदगी क्या मस्त है, ऐसा अरे कैमरा के सामने बैठा है, अरे वो कॉर्पोरेट ट्रेनर है, अरे वेडिंग प्लानिंग कर रहा है. You know the pain. Okay, you know when you have crashed. You know how many rejections you have gone through. Okay, we crashed many times. Okay, 2008 global meltdown हुआ था. इंडिया को भी उसका बहुत बड़ा इफेक्ट हो गया था. उसके बाद जीएसटी आया जो हमारे लाइन के लिए था. ओके, उधर एक बड़ा पॉज हुआ था, एक बड़ा फटका लगा था. डीमोनेटाइजेशन हुआ था, मैसिव डीमोनेटाइजेशन हुआ था. ओके, ऑल ऑफ दीज इम्पैक्टेड द मार्केट्स. ओके, व्हेन इट इम्पैक्ट्स द मार्केट, इट इम्पैक्ट्स द सर्विस प्रोवाइडर. Okay, the biggest impact was the COVID. We sank at a crazy pace because I used to do 5-star hotels. Okay, COVID में 5-star hotel थोड़ी कोई बनाएगा. Okay, they were, everybody was busy making ends meet. Okay, so we took a massive hit. So we would categorize it in 2 parts. Okay, one is a minor crisis and one is a major crisis. So minor crisis मैं एकदम simplify करता हूँ so that you can apply it in your business, he can apply it in his business, a common man can apply it in his business. मैं इधर से पूना जा रहा है गाड़ी से. So मैंने वो सोच लिया कि मैं इधर से अभी न्यू बॉम्बे जाएगा, उधर से I will go to Khopoli, then from there I'll take the Ghats, then I'll go to Lonavala, then I'll go to Pune. You map it. Okay, मेरा विजन क्लियर है, मेरा गोल क्लियर है. अब बीच में गाड़ी पंक्चर हो जाते हैं. Okay. तो do we give up?
वी डोंट. पंक्चर वाला ढूंढते, पंक्चर निकालते, चालू करते, वापस सेम ऑन द सेम पाथ. सडनली बिकॉज ऑफ दैट अटल सेतु यू टेक अ रॉन्ग टर्न एंड देन आफ्टर 5 kilometers you realize यार ये तो उल्टा आ गया. Do you give up? No, you don't. You again turn back and you go back on your thing. So simple ये philosophy जिंदगी में अप्लाई करो. ओके क्योंकि क्या है ना, डेस्टिनेशन ही क्लियर नहीं है ना, तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है. अब मेरा डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है, आई एम नॉट कमिटेड टू रीचिंग माई डेस्टिनेशन ना, क्या साला मेरा ही टायर पंक्चर होता है यार, ये अपना साला सब अपने साथ ही होता है यार, ये अभी उल्टा आ गया, नहीं नहीं अभी नहीं जाते यार, चल अभी घर चलते हैं यार, बहुत हो गया, यू नो. सो बिकॉज द डेस्टिनेशन इज नॉट क्लियर, द गोल इज नॉट क्लियर. तो माइनर क्राइसिस में ये एटीट्यूड रखने का. अब मेजर क्राइसिस का बात करते, कोरोना. ओके, कोरोना वाज अ मेजर क्राइसिस. मैं आई वेंट बैक 20 years in my business straight away because a large ship sinks faster, you know. So then we sat, we thought, अब now this is the time to set your sail, कि अभी हवा उल्टा आ गया, एकदम साइक्लोन आ गया, तो उसके हिसाब से सेट, यू कांट बी रिजिड कि नहीं मैं यही करेगा. Okay, so I used to do 5-star hotels, and you know, so then I immediately changed my strategy. Okay, and I said, okay, I'll do luxury homes and I'll do malls also. There are malls also who are doing. So in the corona, I renovated R City Mall. Okay, I took up these kind of odd jobs which I used to never do. So this is instantly adjusting your sale and taking decisions and creating momentum. Momentum create करने का. Okay, रुकने का नहीं. ओके, जस्ट क्रिएट मोमेंटम, कुछ भी उठा ले. अभी मेरे को सर्वाइव होने का ना, मैं कैसे भी सर्वाइव होगा. फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू सर्वाइव. आई कुड हैव क्लोज डाउन द बिजनेस एंड आल्सो लेफ्ट, कि छोड़ना, अभी कोरोना हो गया, कोई कुछ बोलेगा नहीं कि हाँ यार कोरोना में धंधा बंद हो गया, इट्स ओके. बट इफ यू हैव टू डिसाइड टू फाइट, देन दिस इज द पाथ. ओके, दैट यू हैव टू टेक डिसीजंस, यू हैव टू सेट सेल, झुकना पड़ता है, झुक जा. ओके, बट गेट ऑफ एंड क्रिएट द मोमेंटम. ओके, सो बड़े क्राइसिस में क्या होता है कि नाउ अगेन कॉमन मैन का भाषा यूज करता हूं मैं. ओके, मैं इधर से एक मीटिंग के लिए जा रहा है, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बंद करने के लिए मीटिंग में जा रहा है. मैं मस्त BMW निकला और वो रिक्शा वाले ने ऐसा पैर दिखा के लेफ्ट टर्न मार दिया. ओके, एंड वो आके धाड़ करके मेरे BMW में ठोक गया. मैं देख के बोला अरे यार वाट लग गया. ओके, एक है कि अभी उधर खड़ा रहो, झगड़ा करो, पुलिस को बुलाओ, ये बुलाओ. आई डोंट इवन स्पेंड अ फ्यू सेकेंड्स. आई चेक कितना पैसा है मेरे पास, वो रिक्शा वाले को 10,000 12,000 रुपया देता हूँ, क्योंकि उसका वाट लगने वाला है, उसका धंधा बंद, क्योंकि उसको रिक्शा रिपेयर को भेजने का है. मेरा क्या है, मेरा इंश्योरेंस में कवर होने वाला है, और मेरा गोल क्या है, मैं एक बड़ा मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, उधर शायद मैं 10 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट बंद करने वाला. ओके, उसके सामने मेरा 2 लाख का खर्चा क्या है. मूव इंस्टेंट. रिक्शा वाले को ऐसा गले में हाथ डालता हूँ, बोलता है यार ठोक दिया, मजा आया, चल ये ले यार, चल जाके रिपेयर करवा ले. एंड आई टेक अ टैक्सी एंड आई गो फॉर माई मीटिंग. आई टेल माई ड्राइवर ये गाड़ी रिपेयर में डाल, मेरे देखने से पहले दोबारा करके आ जाना मांगता है ये गाड़ी. Okay, and send another car to my to the venue where I am going to. Move in a big crisis. अब और बड़ा क्राइसिस. अब सोचो कि मैं इधर से बाहर निकला एंड मैं चल के जा रहा हूँ बैग लेके, एंड कोई तो भी, गॉड फॉरबिड, कोई तो भी गाड़ी ने उड़ा दिया मेरे को, मेरा दोनों पाँव कट गया. अब ये मेजर क्राइसिस है, दोनों पाँव कट गया. अब मैं हॉस्पिटल में बैठा है. सो आई हैव दिस वन पॉलिसी वेयर आई हैव अ 24 hour मॉर्निंग पीरियड. ये मेरे लिए बहुत काम करता है. ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है. 24 घंटा छाती पीट के रोने का. ओके, कि ये हो गया, वो हो गया, हे भगवान व्हाट हैपेंड, आई डिडंट डिजर्व दिस, ब्ला ब्ला ब्ला, ये वो, 24 घंटा. उसके बाद अभी समझो मेरा पाव कटा हुआ है, मैं आईसीयू में पड़ा है. ओके, एंड देन आई हैव क्राइड. 24 घंटा खत्म हो गया. देन आई एम थिंकिंग ओके चल पैर कट गया, मेरा गोल क्या था, अच्छा मेरे कंपनी को मेरे को ना इतने वैल्यूएशन पे लेके जाने का है, मेरे को ये क्रिएट करने का, वो क्रिएट, इसके लिए मेरे को पैर का जरूरत है क्या? नहीं ना, अभी तो टेक्नोलॉजी है, क्रिएट तो मैं किधर भी बैठ के कर सकता है. चल मूव ऑन. डॉक्टर कभी छोड़ रहा है मेरे को, इंस्टेंट. वो देन यू आर नॉट क्या है ना, थप्पड़ बहुत पड़ता है जिंदगी में. ऐसा थप्पड़ पड़ गया ना, तो ऐसा नहीं कि मैं इधर जा रहा था, मेरे को थप्पड़ पड़ गया, मैं इधर जाना चालू हो गया. देन यू विल बी टोटली लॉस्ट. देन यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड. देन यू विल फील डायरेक्शनलेस. यू हैव टू बी फोकस्ड. हाँ, पकड़ के चलना, एक लाइन पकड़ के चलना. ओके, फिर वो थप्पड़ पड़ता है ना, फिर वो इधर होता है, अरे नहीं यार इधर नहीं जा रहा था, मैं इधर जा रहा था. तो यू अगेन मेक दैट डायरेक्शन, यू नो, एंड यू फाइंड वेज टू स्टिल रीच देयर, यू नो. सो दैट्स द सिंपल फिलॉसफी टू कम ओवर एनी क्राइसिस. अब इसको आप सिंपल लाइफ में कहीं पे भी अप्लाई कर दो. क्या बात है. यू गिवन एंटायर way of handling your own self. Yeah. Kya baat hai. With so many great examples. Yes. So there are a lot of young students who are watching our podcast. Yeah.
what are the mistakes they shouldn't do early on in their career when they want to start? You've given enough of it, the ideas and thoughts, but कुछ ऐसी बातें हो which they should be clear about. This is step 1, step 2, step 3. Sure. You have disaster management आपने बता दिया, लेकिन कुछ चीजें जो important है वो क्या होना चाहिए? So कुछ बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं, बहुत कॉमन. ओके, बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड मिथ्स दैट आर देयर कि यार सेटल हो जाना मांगता है जिंदगी में. सो अर्ली ऑन इन लाइफ होम लोन ले लेते कि नहीं, धीरे धीरे धीरे, नहीं तो क्या है वो बैंक में पैसा पड़ा रहेगा तो अपन खर्च कर देंगे, तो होम लोन ले लेते. ओके, देन यू नो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, सही है करके वो ऐड आता है बड़ा बड़ा. ओके, तो म्यूचुअल फंड में यार वो कमा रहा है, उसमें से 5,000 रुपये म्यूचुअल फंड में हर महीना डाल रहा है, कोई 500 रुपये डाल रहा है, कोई 1,000 रुपये डाल रहा है. ओके, सो देर इज दिस मिथ दैट एवरीबडी हैज दैट सेविंग से आदमी अमीर बनता है. Okay. पैसा That's what the बचाओ. world still thinks. हाँ, कि सेविंग से अमीर अमीर आदमी बनता है. तो क्या है ना, एंड वो देन वो टिपिकल वो पुराना कहावत है, बूंद बूंद से सागर बनता है. ओके, आई हैव अ वेरी कॉन्ट्रडिक्टिव आइडिया. आई फील कि बूंद बूंद से सिर्फ पेशाब बनता है. ओके, सागर नहीं बनता है. ओके, सागर अगर बनने का है ना तो क्लाउड बस्ट लगता है. ओके, सो दैट्स नॉट द वे टू गो. ओके, सो देन व्हाट्स द वे टू गो? आई ऑलवेज फील दैट जो 99% और या फिर लेट्स सिंप्लीफाई इट, गो टू एनी स्टेशन, गो टू कुर्ला स्टेशन, पूरा ट्रेन भरा हुआ है. ओके, टेक 10 पीपल आउट. ओके, और क्या करने का है जिंदगी में? बहुत पैसा कमाने का, बड़ा बनने का. ओके, कैसा करने का है तेरे को वो पता नहीं. ओके, सो आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव दैट एवरीबडी, भगवान सबको ना एक जबरदस्त गिफ्ट देके भेजता है. सब कितना भी नालायक होने दे, कितना कोई भी रहने दे, एक जगह जबरदस्त गिफ्ट देता है. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई हैड अ फ्रेंड हु वाज वेरी वायलेंट इन स्कूल डेज. मारामारी कर, ये कर, वो कर, कुछ नहीं कर, पढ़ाई में पीछे, ये वो. लेकिन हम लोग जब भी पिकनिक जाते थे ना, मस्त वड़ा बना के लेके आता था. Okay. अपने हाथ से मस्त वड़ा और चटनी बना के लेके आता था. ओके, फिर हम लोग कॉलेज गया, इंजीनियर बना, ये किया, नौकरियों पे गए, वो अभी भी मारामारी कर रहा है, टपरी पे बैठा है. ओके, देन एक यूनियन पे हम लोग उसको बोला, यार तू एक काम करना, अभी कुछ नहीं कर रहा है, तो एक अपन सब कंट्रीब्यूट करते, एक वो गाड़ी डालते वड़ा पाव का. ओके, तो उसने वड़ा पाव का गाड़ी डाला, उसका हाथ में जादू तो था ही. ओके, वो गाड़ी पे इतना भीड़ होना चालू गया, एक गाड़ी से दूसरा, दूसरा गाड़ी से तीसरा, तीसरा गाड़ी से चौथा, एंड आज वड़ा पाव का. अच्छा. हाँ, सो यू नो, everybody has a gift, कुछ ना कुछ गिफ्ट है. अब 99% ऑफ द पीपल डोंट रियलाइज व्हाट गिफ्ट दे हैव, या अगर दिया है तो गट्स नहीं है उस पे काम करने का. तेरा ही स्टोरी ले ले. ओके, यू वांटेड टू बिकम अ कोरियोग्राफर. ओके, फैमिली ने क्या बोला होगा कि जा बन. 100% की बॉस, क्या उल्टा लाइन में जा रहा है तू, क्या बकवास कर क्या बकवास कर रहा है. ओके, लेकिन तेरा गिफ्ट था, एंड देन यू सेड नहीं भाई. सो आई फील इफ यू कांट convince your parents, how are you going to convince your world? If you can't convince your own parents about your talent and the gift that you have and what you want to do, how are you going to convince the world? You are expecting the world to accept you. You can't, ना. So वो पहले तो इसको distinct forte बोलते हैं कि मेरे अंदर distinct forte क्या है, वो ढूंढो. वो distinct forte को ढूंढो, and then have the guts to choose a profession in that forte. Okay, choose that forte. And then constantly innovate. I am sure you must have practiced for hours, and what step I should do, what I should do, whether it is DJing, whether it is this, whether it is corporate training, whether it is events. There is a lot of preparation that goes for that 2 hours of a show. Right. You know, right, very true. Maybe months of it. So, and so keep at it. And then suddenly you realize that, oh, I become good, you know. So I'll give you a very small example. There is a boy who came into my office, मेरा old schoolmate, and he said, यार मैं engineering किया है, and I've got a decent job, and you know, I'm thinking कि मैं पनवेल में घर ले लेता हूँ. Okay. He was quite young. He was around 28. Okay. तो मैं बोला अच्छा कितने का है पनवेल का घर? तो बोलता है कि सर वो 40 लाख का है, तो मैं लोन ले लेगा. ओके, तो मैं बोला अच्छा ठीक है. देन आई सेड अच्छा तू मेरे पास अगर एडवाइस के लिए आया है तो तू एडवाइस लेगा, क्योंकि मैं ऐसा फ्री में एडवाइस नहीं देता, क्योंकि पीपल डोंट केयर अबाउट इट. ओके, सो ही सेड नहीं सर, इसीलिए तो मैं आपके पास आया, बिकॉज यू नो आई हैव सीन यू ग्रो फ्रॉम नथिंग. तो आई सेड ओके, देख ऐसा है कि तेरे पास तू 50 लाख का लोन लेने वाला है, इतना मत ले, तू 30 लाख का लोन ले,
एंड जाके एक एडवांस्ड मैनेजमेंट का कोर्स कर फ्रॉम अ फैबुलस यूनिवर्सिटी. खुद पे इन्वेस्ट कर. देख पैसा कमाने वाला कौन है? मैं. ये मेरा बॉडी. ओके, उस पे किधर इन्वेस्ट कर रहा है? सब जगह पैसा डाल रहा है. इस पे किधर डाला? पैसा तो जनरेट तो इधर से होने वाला है ना. ओके, तो तू एक काम कर, 30 लाख का लोन ले, लेकिन खुद के लिए. सो ही वेंट टू दिस अमेजिंग यूनिवर्सिटी इन सिंगापुर. ओके, ही डिड अ कोर्स. फिर उधर का एल्यूमिनाई में से उसको उठाया अच्छा जॉब पे, एकदम एट अ वेरी हाई पैकेज. आफ्टर 1 year he was picked up as CEO by Geetanjali Jewelers. Okay. After 2 years he was picked up as CEO by DIY, जो नया कंपनी अभी लॉन्च हुआ है ना. एंड उसने लिटरली 4 साल के अंदर पवई में 3 BHK लेक फेसिंग फ्लैट लिया. सो एंड ही टुक योर एडवाइस ऑन दिस. हाँ, अब ये एडवाइस जनरल है, कोई भी कर सकता है. कि बस तेरे पे तो खर्च करना. तू तेरे अंदर क्या कला है जिसके लिए तू जो तू मार्केट में लेके जाएगा तो तेरे को लोग पैसा देगा. अच्छा, उसके बाद तू जीनियस बना के उसके अंदर ऐसे जनरल थोड़ा मेरे को ये आता है, थोड़ा वो आता है, थोड़ा ये आता है, नहीं. जीनियस बना के तू उसके अंदर वो जीनियस बन. उसके बाद जा, एंड देन देयर आर पीपल हु विल अप्रिशिएट दैट एंड दे विल पे यू फॉर दैट. And then constantly keep evolving. So don't make that mistake. क्योंकि क्या होता है कि the moment you take a loan, the moment you take early in life, your risk taking capacity becomes zero. And from your life you will tell me that मैंने रिस्क लिया. मैंने डीजे बनते वक्त रिस्क लिया, मैंने कोरियोग्राफर बनते वक्त रिस्क लिया, मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनर बनते वक्त रिस्क लिया, मैंने प्लानर बनते वक्त रिस्क लिया, अब पॉडकास्ट के वक्त भी रिस्क ले रहा है. रिस्क ले रहा है. पीपल से क्या एड़ा है, कुछ भी करता है. ओके, अरे लिया ना रिस्क भाई, किया काम ना. Yes. So your risk taking capacity becomes zero if you take some kind of a loan. और वो दबा हुआ है, फिर चुपचाप अपना डब्बा लेके जा रहा है हर रोज. क्यों? तो वो लोन का पैसा भरने का है, बच्चे का स्कूल फी भरने का है. डोंट मेक दैट मिस्टेक. बिंदास फ्रंट फुट पे खेलो इन द अर्ली एजेस. How do you go from hand to mouth existence to creating wealth? So थोड़ा भी अपन अध्यात्म की तरफ जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी के, बिकॉज आई नो दैट यू आर आल्सो वेरी स्पिरिचुअल सब्जेक्ट. यू आर अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल पर्सन. ओके, सब लोग बोलते हैं इंडिया सोने की चिड़िया था एंड ऑल ऑफ दैट. अपन सो यू नो पीपल लाइक टू ड्वेल इन द पास्ट कि सोने की चिड़िया थी. ओके, गो इनटू द स्क्रिप्चर्स. व्हाई वाज इंडिया द सोने की चिड़िया? 4 पिलर्स पे इंडिया बना था. फर्स्ट इज महामहेश्वरी, ओके, महासरस्वती, महालक्ष्मी एंड महाकाली. 4 पिलर्स, 4 मजबूत पिलर्स पे इंडिया सोने की चिड़िया बना था. ओके, व्हाट इज महामहेश्वरी? महामहेश्वरी इज, you must have read the book of secret, the secret, you know, the secret, the book. You must have read the book. You must have read, seen videos. Everybody talks about it. तब भी अपना वेद पुराणों में लिखा था, मैनिफेस्टेशन. हाँ, ये लिखा था कि भैया भगवान इज वेरी नॉटी. तू जो मांगेगा ना वो दे देता है. सो बी वेरी केयरफुल तू क्या मांग रहा है. सो बी वेरी वेरी केयरफुल, तेरा जुबान से क्या निकल रहा है ना, क्योंकि तथस्तु कब होएगा ना वो बोले समझेगा नहीं. ओके, तो कभी भी नहीं बोलने का नहीं यार दाल रोटी चल रहा है, नहीं यार जहर खाने का भी पैसा नहीं है. लोग यू नो यू सी समटाइम्स रिच पीपल आल्सो सेइंग यार ये मुक्ति चाहिए, यार ये बहुत बहुत हो गया, अभी बहुत पैसा हो गया, अभी मुक्ति चाहिए, अभी आराम से रहने का. सच्ची में मुक्ति हो जाता है. सो बी वेरी केयरफुल. दिस इज महामहेश्वरी. सेकंड इज महासरस्वती. ओके, सरस्वती इज नॉलेज. So you constantly keep acquiring knowledge. Okay, for anything, whether you want to be a good cameraman, whether you want to be a good podcaster, whether you good event manager, good corporate trainer, you're constantly studying. बुक्स पढ़ रहा है, वीडियोस देख रहा है, ये देख रहा है, हाउ कैन आई पॉलिश इट, हाउ कैन आई पॉलिश इट. अच्छा, ये कैमरामैन के लिए तू अभी आजकल का फोटोग्राफी देख, क्या एंगल कहाँ से घुसता है, क्या टेक्नोलॉजी यूज करता है, द वे दे एडिट इट. ओके, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली स्टडी. दिस इज महालक्ष्मी. कॉन्स्टेंट स्टडी, कॉन्स्टेंट इनोवेशन and application. Okay, Mahalakshmi, the moment you do these first two, Lakshmi is going to flow in. It's inevitable. Lakshmi is going to flow in. But when Lakshmi starts flowing in, you have to be very careful. Because Lakshmi has certain qualities. When you start understanding money na, तो बहुत मजा आना चालू होता है. Money is nothing like it's not a physical thing. It's an energy form. Okay, Lakshmi loves the fact that somebody is respecting it. इसलिए तेरे मुंह से, किसी के भी मुंह से गलती से भी नहीं बोलने का. ओके, कि नहीं यार वो मोह माया है, ये मुक्ति चाहिए, कभी नहीं. ओके, लक्ष्मी बोलेगी ठीक है तेरे को इज्जत नहीं मैं जा रही. सो लक्ष्मी लव्स रिस्पेक्ट, सो रिस्पेक्ट इट. ओके, लक्ष्मी लव्स ब्यूटी. इसलिए घर साफ रखो, ऑफिस साफ रखो. यू नो इट डजंट मीन दैट स्पेंड अ लॉट, बट क्लीनलीनेस, डोंट हैव क्लटर, डोंट हैव नेगेटिव एनर्जीज. ओके, टॉक नाइसली. ओके, कीप अबंडेंस. लक्ष्मी लव्स इट.
एंड देन लक्ष्मी लव्स मल्टीप्लिकेशन. ऐसे स्टैक करके मत रखो. ऐसे स्टैक किया हुआ पानी कैसे सड़ जाता है वैसे पैसा भी स्टैक किया हुआ उसको फ्लो में रखो. लक्ष्मी लव्स फ्लो. ओके, लोग बोलते हैं अरे यार ये साला स्पोर्ट्स कार ले रहा है, ये 3,000 करोड़ खर्चा कर रहा है शादी में. अरे फ्लो. 3,000 करोड़ रुपए खर्चा किया शादी में, किसको गया? इवेंट मैनेजर को गया, हाँ, फूल वाले को गया, खाने वाले को गया, ड्रेस वाले को गया, कैमरा वाले को गया. सिस्टम में आया ना पैसा भाई. ऐसा, और मैं तो बोलता है ऐसा और 100-3,000 करोड़ का शादी करो, अपना सिस्टम में चाहिए पैसा आ जाता है. एंड ये लोग नहीं समझते, बोलते हैं अरे क्यों खर्चा कर रहे हैं. या आई से ग्रीड इज अ वेरी गुड थिंग. राइट. आई वांट टू बाय अ यॉट. ओके, मैंने सोचा और आ गया क्या? लेके दिखा दो. I have 4,000 people to, if I want to buy a yacht, na, I will have to employ 10,000 people. I have to buy more material. I have to do lot of projects. I have to, तो ये पूरा पैसा सिस्टम में घूमेगा. मेरा ग्रीड की वजह से वो सिस्टम में कितना पैसा जनरेट हो रहा है. So unfortunately, money was called evil. वो हिंदी, पुराना हिंदी पिक्चर देख, वो सेठ बोलेगा तो विलन, हीरो बोलेगा तो गरीब. Okay, तो वो अनफॉर्चुनेट हो गया वो. दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट. सो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग. देयर वाज अ कम्युनिटी लिविंग स्टोरी आल्सो कि द रिच मैन डजंट स्लीप. हाँ, सो ये अनफॉर्चुनेट नैरेटिव्स है. ओके, जो तभी नहीं था इंडिया में. देयर वाज रिस्पेक्ट, देयर वाज ऑपुलेंस, देयर वाज ब्यूटी, देयर वाज आर्ट फॉर्म्स. ओके, सेकंड सेंचुरी से अपन स्कल्पचर्स क्रिएट कर रहे हैं. यूरोप अभी 12-14 सेंचुरी से स्कल्पचर क्रिएट करना चालू किया. अपन से सेकंड सेंचुरी से करा रहे. आज भी कोणार्क टेम्पल देख के वो फॉरेनर्स बोलते हैं कि बॉस ये एलियन ने बनाया. ओके, सो देयर वाज ऑपुलेंस. क्यों? क्योंकि ये था. अब लक्ष्मी आया. अब ऑटोमेटिकली व्हेन यू हैव लक्ष्मी तो यू आर गोना गेट अटैक्ड. कोई बाजू वाला बोलेगा नहीं मेरे को मांगता है पैसा, मैं लूट के लेके जाएगा. अपने कोई भी मंदिर पे जाके अगर तू देखेगा ना कमलक्ष, तो उस पे लिखा है शस्त्रे न रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते. मतलब शस्त्र और शास्त्र साथ में चलना चाहिए. शस्त्र और शास्त्र साथ में चलना चाहिए. ये नहीं कि नहीं जी भाई मैं तो मॉन्क है, मैं तो पीस लविंग है. अरे बाजू वाला पीस लविंग होना चाहिए ना. सो यू सी द वॉर्स दैट आर हैपनिंग, यू सी व्हाट्स हैपनिंग एवरीवेयर. सो ये हो गया 4 पिलर मजबूत. अब ये सिंपल, अभी मैंने तेरे को भगवान के एंगल से समझाया. अब इसको अपने लाइफ में, वेदर यू आर एन एम्प्लॉय, वेदर यू आर अ स्टूडेंट, वेदर यू आर अ एंटरप्रेन्योर, वेदर यू आर डूइंग एनीथिंग, ट्राई एंड अप्लाई इट एंड सी द फन. यहां से देन बेसिक हैंड टू माउथ से ना वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाना चालू होता है. यू हैव टू अप्लाई दिस एंड स्टडी इट कि मैं काम में कहां लगाएगा इसको. दिस वाज ऑलवेज अप्लाइड ड्यूरिंग always and that's how we were a wealthy nation. Well, क्या बात है सर. This is not something many people know of, the 4 pillars जैसे आपने बताया. yes, superb है. आप जैसे 4 pillars बताए, आप और एक बात बता देते. there are 4 types of people. एक मेरे को एक analogy देते बहुत अच्छा लगता था, वापस बताइए ना प्लीज. Okay, so to understand 4 types of people, let's first understand darkness, okay, and light. Okay, एक होता है अंधेरा, एक होता है लाइट, प्रकाश. ओके, सो अंधेरा में क्या आता है? पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ डिसिप्लिन, वाइसेस, नेगेटिव अप्रोच, डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी. तो ये अब मैं झोपड़पट्टी में रहा है तो मेरे को मालूम है. अब ये बाय डिफॉल्ट हो गया, उधर जन्म हो गया किसी का. ओके, तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड बाय डिफॉल्ट. अब वो बाय डिफॉल्ट मेरा किसी का जन्म अब समझो झोपड़पट्टी में हुआ. ओके, अब ये अंधेरे में जन्म हुआ. But you can strive to go towards light. Now, what is light is exactly the opposite. इधर uneducated था, उधर educated. इधर indisciplined था, उधर disciplined. इधर negative था, उधर positive. इधर we had empowering personalities. We have constructive personalities. Abundance mentality. उधर scarcity mindset था. Okay, उधर lazy थे, इधर they are active and constantly doing things. So this is light. So from darkness you can strive to go towards light. Okay, this is first category. There are from darkness people go towards darkness only. मतलब है झोपड़पट्टी में, लेकिन वो थॉट प्रोसेस भी वही. वो गाली दे रहा है, सिस्टम को गाली दे रहा है, समाज को गाली दे रहा है, चोरी कर रहा है, दारू पी रहा है, अपने भाग्य को कोस रहा है. Okay, so this is running from darkness to darkness. Now, some people are lucky that they are born rich. अमीर घर में पैदा होते, लेकिन उनको आदतें बुरी लग जाती. शराब का आदत हो गया, जुए का आदत हो गया,
एम्पावरिंग आदत नहीं, इसका लूट ले, उसका लूट ले, उसका लूट ले, नॉट हैविंग द अबंडेंस मेंटालिटी, नॉट वांटिंग टू डिस्ट्रीब्यूट. ओके, सो ही इज रनिंग फ्रॉम लाइट टुवर्ड्स डार्कनेस. लाइट में उसका जन्म हुआ, लेकिन वो जा रहा है अंधेरे की तरफ. एंड देन देयर आर पीपल लाइक रतन टाटा जो लाइट में, उजाले में जन्म लेते हैं एंड उजाले की तरफ भागते. So that's the fourth category. So always in life, wherever you are, you could be in light, you could be in darkness, you could be, because वापस जिंदगी ऐसा है. Okay, always strive to run towards light. That's the bottom line here. कि the four categories: darkness to darkness, darkness to light, light to darkness, and light to light. Always strive to run towards light. Is the simple philosophy. That's very nice philosophy. Thank you. Not everybody is as creative as you, sir. Sure. Romin. Or not everybody follows the passion. Is it true that if you follow your passion, success will follow? Or how does common man spice up his work life and avoid burnout? How can he avoid burnout or frustration? So इसमें दो questions है. एक आ गया तेरा पैशन का क्वेश्चन, और दूसरा आ गया हाउ टू स्पाइस अप योर लाइफ. सो लेट्स फर्स्ट एड्रेस द वेरी कॉमन मिथ. सब जगह बोलते हैं यू नो फॉलो योर पैशन एंड मनी विल फॉलो. ओके, इट्स बुलशिट. अच्छा, इट्स द बिगेस्ट बुलशिट. ओके, you don't have to follow your passion to what it takes. It's literally like saying कि हाँ you can eat anything and still lose weight. Okay, you literally have to do what it takes. Your journey, body बनाया. Okay, who likes to go to the gym? You know, I was doing Being Human for Salman Khan, and I had the opportunity to meet him. Okay, he told me, you know, so वो सबको बोलता है भाई बॉडी बना यार, भाई एक्सरसाइज कर यार, क्या ये पेट है, so ऐसा हाथ बीत लगा के क्या यार पेट वेट निकल रहा है, एक्सरसाइज कर. So on the conversation he said nobody likes to go to the gym. मेरे को भी नहीं अच्छा लगता है यार, मस्त पढ़ते हैं यार, दारू पीते हैं, एंजॉय करते हैं, लड़कियां है, ये है, ग्लैमर है. ओके, हु लाइक्स टू गो टू द जिम, बट यू डू इट राइट. सो एंड देन यू गेट द फाइनल प्रोडक्ट. ओके, सब लोग कमलाक्ष का बॉडी देखता है, लेकिन उसके पीछे का मेहनत किधर देखा, यू नो. सो जब जब आप वो करेंगे जो आपको पसंद नहीं आता, जब जब आप वो करेंगे जो आपको पसंद नहीं आता है, तब तक आपको वो मिलेगा जो आपको पसंद है. सिंपल. ओके, अब इसको किधर भी अप्लाई कर. तू बिजनेस में अप्लाई कर, स्टूडेंट अप्लाई कर, वो तेरा लाइफ में अप्लाई कर ले, बॉडी बनाने के लिए अप्लाई कर ले, किधर भी अप्लाई कर ले. सो ये हो गया, दिस इज आंसरिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट द पैशन. नाउ कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन अबाउट ए कॉमन मैन का जिंदगी जो डब्बा लेके जा रहा है, उसका जिंदगी में कैसे स्पाइस अप करने का. सो देन आई विल टेक यू सिंपल टू माई इंटरव्यू प्रोसेस इन माई कंपनी. ओके, इन माई कंपनी व्हेनेवर आई इंटरव्यू पीपल, जो भी आदमी पहला इंटरव्यू में पूछता है हाँ क्यों तेरे को भाई गारनेट में क्यों आने का, तो बोलता है नहीं मेरे को ना अच्छा बड़ा कंपनी में जाने का और सेटल होने का है जिंदगी में. मैं उसको बोलता हूँ बेटा बाहर जा. इमीडिएट, विद इन 5 seconds द इंटरव्यू इज ओवर. ओके, आई डोंट कीप पीपल हु वांट टू सेटल, क्योंकि सेटल होना ये मेरे हिसाब से एक गाली है. इससे बड़ा गाली कोई नहीं होता है. क्योंकि सेटल होने का क्या मतलब होता है कि अभी मैं सेटल हो गया तो अभी मैं नया कुछ सीखेगा नहीं, मैं अभी नया कुछ रिस्क लेगा नहीं, मैं मेरे कंफर्ट जोन से निकलेगा नहीं, क्योंकि मैं सेटल हो गया. ये लोग इधर से नीचे ही जाते, क्योंकि ग्रोथ, लर्निंग मोर थिंग्स, यू नो, गेटिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन इज द अपवर्ड कर्व. ओके, इधर आ गया, सेटल हो गया अभी मैं, अभी कुछ नहीं. ओके, तो इधर से भी धीरे 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 धीरे, क्योंकि बाकी लोग तो नया सीख रहे, बाकी लोग तो इनोवेट कर रहे, बाकी लोग तो दे आर हंग्री. ओके, तो वो कैंडिडेट पहले तो बाहर जाता है. अब जो कैंडिडेट थोड़ा एम्बिशियस आता है, you know, usually I like to take the backbenchers, the ambitious guys who want to do something. They don't necessarily have to know the best of English, they don't necessarily have to have the best of personality, but that hunger to do something, बस ये कैंडिडेट मेरे लिए सही कैंडिडेट, बाकी ट्रेनिंग मैं कर देता. नाउ आई टेल देम, ऑल द कैंडिडेट्स का इंटरव्यू पेपर के ऊपर मेरे हाथ से लिखा हुआ उनका ड्रीम्स रहता है. आई आस्क देम, बेटा तेरा सपना क्या है, मेरे को बता. छोड़, तू 2 मिनट के लिए पैसा वैसा छोड़, कैसा अपन जाएंगे वो मैं तेरे को सिखाएगा, तेरा सपना क्या है. वो बोलता है नहीं मेरे को ना मेरे माँ बाप के लिए एक अच्छा घर लेने का है, इधर मेरे को भांडुप में लेने का है. ओके, चल कितने का है घर. लॉट ऑफ पीपल से नहीं मेरे को घर लेने का है. अरे किधर लेने का है, अच्छा भांडुप में, कितने का आता है, नहीं वो नहीं पता. अरे तो जाके पता कर. तो अच्छा भांडुप में घर लेने का, चलिए ओके, मेरे को एक छोटा सा गाड़ी लेने का, कितने का, अच्छा ये ऐसा करके उसका सब सपना. मेरे को मेरे बीवी के लिए एक ना अच्छा सा गोल्ड का मंगलसूत्र बनाने का है, अच्छा उसका कितना पैसा, फिर ये ओके, ऐसा पूरा व्हाट यू वांट टू डू, व्हाई यू वांट टू डू इट. अच्छा, इमोशंस अच्छा रहता है सबका.
मेरे माँ बाप के लिए करने का है, मेरे बीवी के लिए करने का है, मेरे लिए करने का है, मेरे को आगे बढ़ने का है। ओके, इमोशंस अच्छा रहता है। तो वाई हो गया, व्हाट यू वांट टू डू, ये हो गया। फिर उस पर मैं फिगर डालता हूँ कि देख बेटा, तू बोल रहा है कि तेरे को 1 करोड़ रुपए कमाने का है, कितने टाइम में कमाने का है? सर 5 साल में कमाते। ओके, मैं बोला अच्छा 5 साल में, इसका मतलब मैं उसको डिवाइड करेगा 5 साल या 3 साल में, तो 3 साल डिवाइडेड बाय ओके, तो 2,70,000 या 75,000 रुपीज पर मंथ तेरे को कमाने का है। अभी तेरा औकात क्या है? या तेरे पास जो स्किल है, तेरा मनी मेकिंग कैपेसिटी कितना है? 50,000। तेरे को जाने का 2,75,000 पे, तो कैसे जाएंगे बेटा, तू बता मेरे को। नहीं सर, मेरे को कुछ सीखना पड़ेगा, मेरे को नया और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा हाँ ठीक है, सीखने के लिए मैं तेरे को पैसा देगा। ओके, ग्रोथ के लिए मैं तेरे को गाइड करेगा। ओके, तेरे अंदर आग है ना, बस उतना मेरे को चाहिए, बाकी मैं गाइड करता हूँ ना तेरे को। देख, तेरे को इधर पहुंचने का है, तो तेरे को अभी तू 50 पे है, तेरे को कमाने का है 2,75,000। देयर इज अ पाथ टू बी कवर्ड। 3 साल में तेरे को उधर पहुंचने का है। ओके, तो वो वापस मेरा वो वाला पॉइंट आ गया जो मैंने बोला था कि एक्सपोनेंशियली यू हैव टू ग्रो योर मनी मेकिंग कैपेसिटी। तो तेरे को नया कुछ भी सीखना पड़ेगा, नया स्किल सीखना पड़ेगा। या तू फैक्ट्री में जाके खड़ा होते रहो, प्रोडक्शन का फैसिलिटी सीख ले, फिर उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। तो तेरे को मैं सिंपल, जितना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होएगा उतना I can pay others, you know, so that they can take care of that responsibility. So that's how they come excited every day, because it's very crystal clear कि अभी मेरे को 3 साल में किधर पहुंचने का है। And then every year on Diwali I remove that page जो मैंने लिखा था ना, फिर उसके साथ मैं बैठता हूँ, बेटा क्या है। Some people are like they give up कि नहीं सर, it's very hard work, ये वो। तो ठीक है, चल नो प्रॉब्लम, तेरे को तो ठीक है, तो तू एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करेगा, लेकिन you will be one of the herd. Okay, but there are people who exponentially grow, who come at 50,000 rupees, and then now they're earning 20 lakh rupees a month. There are these kind of people in my office also. Okay, and young guys, young girls. Okay, so this is how you spice up a normal life. Okay, when I told you कि मैं जब नौकरी करता था, पहले साल में मैंने स्कूटर लिया, दूसरे साल में फिएट लिया, तीसरे साल में 118 लिया, चौथे साल में कॉन्टेसा लिया। क्यों? क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली मेरे बॉस के साथ इंटरेक्ट करता था। तेरे को क्या चाहिए, तेरे को क्या चाहिए, मैं करता हूं ना यार। तू मीटिंग में क्यों जा रहा है, मैं जाता हूं। तू इधर मीटिंग में क्यों जा रहा है, तू पैसा निकालने मांगने क्यों जा रहा है, मैं जाता हूं। ओके, आई विल गेट दैट मनी आउट। देख, मैं प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा के देता हूं, ये कर। जॉब कर रहा है ना, यू हैड द ड्राइव आल्सो। बट ये आपने जैसे बोला, जो 50,000 से 2.5 लाख या जो भी है इसका ड्रीम के लिए, यू हैव टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। दैट इज ऑफ कोर्स ये बेसिक, एकदम बेसिक है। कंफर्ट जोन सबको पसंद है कि मस्त घर, मस्त गाड़ी, EMI चालू है, बच्चा है, ये है। ओके, लेकिन कंफर्ट जोन बहुत डेंजरस है जगह। यू हैव टू डेफिनेटली, इफ यू वांट टू डू एनीथिंग। देख, ऐसा है कि जबरदस्ती की सबको इंस्पायर नहीं करने का। कुछ लोग बोलते हैं यार मेरे को नहीं इंस्पायर होने का, तू जबरदस्ती क्यों कर रहा है यार। तो ठीक है, अपने ये पॉडकास्ट के बाद ना एक आदमी के अंदर भी अगर आग लग गया ना, बहुत है, वी आर सक्सेसफुल, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि वो इतना बड़ा होएगा, वो जाके 1,000, 2,000, 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। बस हो गया, एक को भी चिंगारी लग गया तो। सो इट्स ओके। You are a spiritual person. How does it help you in your creative process? स्पिरिचुअलिटी कमलेश, बहुत फ्रैंकली बोलूँ ना तो मेरे को आज तक ठीक से समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत हैवी सब्जेक्ट है ये। ओके, बट यू नो अबाउट इट। हाँ, थोड़ा सिंपल करते हैं। ओके, थोड़ा सिंपल करते हैं। भगवान ने तेरे को क्यों सक्सेसफुल बनाया यार? कमलक्ष में ऐसा क्या था कि कमलक्ष को सक्सेसफुल बनाया? ओके, भगवान का थोड़ा तो आशीर्वाद है ना। ओके, तू मेहनत भी किया, लेकिन देन थोड़ा आशीर्वाद भी था। ओके, सो एक पॉइंट के बाद ना, व्हेन यू कम कि अच्छा बिल्कुल ही जीरो से चालू किया, फिर अच्छा इतने पे पहुंचा, फिर इतने पे पहुंचा, फिर इतने पे पहुंचा, एक पॉइंट ऐसा आता है कि यार मेरे को क्यों सक्सेसफुल बना रहे भगवान। एंड व्हेन यू आस्क दैट क्वेश्चन, यू गेट अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर कि शायद मेरे हाथ से कुछ तो भी बड़ा होने वाला है। यू नेवर नो कमलक्ष, तेरे हाथ से कुछ तो भी बहुत बड़ा होने वाला रहेगा। डू यू ट्रस्ट दैट? यस, इफ यू ट्रस्ट दैट ना, बस ये स्पिरिचुअलिटी है। सबसे पहली बात, टू स्टार्ट विथ दैट ग्रैटिट्यूड कि बॉस भगवान का ब्लेसिंग है, मेरे को सिर्फ काम करने का है, अपने गोल की तरफ काम करने का है। ओके, ये ग्रैटिट्यूड्स विल क्रिएट अबंडेंस फॉर यू। तो ये टू स्टार्ट विथ बेसिक स्पिरिचुअलिटी हो गया, एकदम सिंपल। ग्रैटिट्यूड से चालू करते। ओके, आई हैड अमेजिंग पेरेंट्स, आई एम ब्लेस्ड विद एन अमेजिंग पेरेंट्स, आई एम ब्लेस्ड विद अमेजिंग वाइफ, I have the most amazing business partner, Surinder, whom you have met. Okay, most amazing business partner. वो भाई है मेरा। आज तक हमने धंधे में आज तक कभी हिसाब नहीं किया कि तेरा इतना, मेरा इतना,
जब मेरी मम्मी पहले उसको कॉल करती है मेरे को कॉल करने से पहले, उसकी मम्मी पहले मेरे को कॉल करती है उसको कॉल करने से पहले. अच्छा. दैट्स द काइंड ऑफ, सो यू आर सो ब्लेस्ड टू हैव सच अमेजिंग पीपल अराउंड यू. ये मिलता है. ओके, तो ये हो गया बेसिक स्पिरिचुअलिटी, बी ग्रेटफुल अबाउट इट. ओके, अब थोड़ा और आगे जाते हैं. व्हेन आई डिड विपश्यना, सो आई डिड विपश्यना. ओके, विपश्यना में जो भी हुआ, लेट्स नॉट गेट इनटू टेक्निकलिटीज. ओके, एक चीज ये समझ में आया, अब मैं इधर है ना, तो कमलाक्ष के साथ ये टाइम एंजॉय करते. और कमलाक्ष का विजन क्या था, वो अपन अचीव कर रहे हैं क्या, बस जस्ट बी फोकस्ड ऑन दैट. ओके, सो बी इन द मोमेंट. ओके, ये बी इन द मोमेंट इतना ब्यूटीफुल है ना, अभी कोई सुन नहीं रहा इसलिए मैं तेरे को बता रहा हूँ, सीक्रेट बताता हूँ मैं तेरे को. तो मैं ना एक बहुत फैंसी घर कर रहा था वर्ली में. सीलिंग से जाएगा ना तो ये सब जितना टावर्स है ना उसमें पेंट हाउसेज जितने हैं मोस्टली आर डन बाय मी. तो आई वाज डूइंग दिस फैंसी पेंट हाउसेज, 100 करोड़ का घर है वाला. एंड उधर मेरे को ऐसा बालकनी में एक जबरदस्त स्कल्पचर चाहिए था. मेरे को सूझ नहीं रहा था यार क्या बनाऊं. ओके, फिर मैं एक दिन काम कर रहा था एंड देन बहुत भूख लगा था मेरे को, तो मैं नीचे उतरा और नीचे खाऊ गली था. उधर 100 करोड़ का फ्लैट और इधर खाऊ गली, और उसमें 100 रुपए का डोसा खाया मैं. अब वो डोसा वाला डोसा बना रहा था, तो ऑलमोस्ट 2 बजे का टाइम था, तो उसके पास भीड़ भी था. ओके, इतना फास्ट बना रहा था वो, ठंग 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 टक 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 टक, एंड ही वाज सो फास्ट, ही वाज सो परफेक्ट, एंड हर डोसा उतना ही क्रिस्प, उतना ही टेस्टी. ओके, मस्त वो ठंग 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 टुकड़ा करके फिर वो प्लेट में ऐसा सरकाते, ये वो. इट वाज लाइक वॉचिंग पोएट्री, इट वाज लाइक वॉचिंग अ डांस. एंड आई एम जस्ट वॉचिंग. मैं मोबाइल सब कुछ नहीं देख रहा था, मैं सिर्फ उसको देख रहा था. बाकी लोग सब मोबाइल देख रहे हैं, अरे झाला का डोसा यार, जल्दी जल्दी दे. बाकी लोग मैं उसको देख रहा हूँ. मैं बोला यार क्या मस्त डांसर है, क्या मस्त पोएट्री चल रहा है. ठक, मैन इन मोशन. ओके, मैन इन मोशन का मैं एक कॉन्सेप्ट बनाया कि आई टुक अ साइकिल एंड वो साइकिल का पूरा पार्ट्स निकाला, 2 टायर रखा एंड उसको कनेक्ट किया बाय अ मैन, एब्स्ट्रैक्ट मैन. ओके, man in motion, fluidity, and we made this most amazing sculpture, and it became one of the most famous sculptures, the man in motion. Okay, you got inspired with the dosa wala. Bus, I was just there, I was just watching. क्या है जिंदगी में यार, ये अगर तू, if you can find time to pause and be in that moment. I was having tea, so one of the kings of Udaipur is my client. Okay, तो उसके यहाँ वो बहुत फैंसी ऐसा हाई टी होता है. ओके, तो वो हाई टी में, आई कट द स्टोरी शॉर्ट, हाई टी में एक चाय आया मस्त, एंड आई एंजॉय टी. सो आई वाज लाइक, आई वाज सिपिंग इट एंड आई वाज एंजॉयिंग इट. ओके, एंड आई टोल्ड हिम कि सर इसमें जो केवड़ा और वो रोज वाटर डाला है ना, इसकी वजह से अलग एक फ्लेवर आ रहा है. द किंग वाज सरप्राइज्ड. ही सेज, सर ये चाय ना मैं 20 साल से सर्व कर रहा हूँ, आज तक किसी को ये चमका नहीं कि इसके अंदर केवड़ा और रोज वाटर है. So being in the moment na, it allows your brain to sense. This brain is really beautiful. मतलब इसको अगर तू स्टिमुलेट नहीं करेगा ना, मतलब क्या है, ये अपन मोबाइल देखते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं ना, तो ये अपन कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें ब्रेन क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है. सो इट इज अ प्रोसेसर. जैसे ही तू मोबाइल साइड में रखेगा, सब कुछ साइड में रखेगा, व्हेन यू आर सिटिंग विथ योरसेल्फ ना, द ब्रेन टेक्स ओवर द पोजीशन ऑफ क्रिएटिंग. द ब्रेन इज वेरी क्रिएटिव. आइडियाज आता है, ये सोचता है, ये थॉट आता है, वो थॉट आता है, नेगेटिव थॉट्स आता है, सब कुछ होता है. तो ये जो ब्रेन है ना, उसको वो टाइम दे, जस्ट गिव इट दैट टाइम एंड एंजॉय दैट क्रिएशन. इट कुड बी एनी फील्ड. क्या बात. So that's what I feel is. I know you are a very patriotic person. Yeah. You love for the country, and in the same lines, tell me about your company's CSR practices and what you do. So patriotism, again, though my daughter is in the army and she's a sniper, she's a trained sniper. Okay. But it does not mean that only if you're a soldier you're patriotic. Right. अभी इंडियन टीम जीत के आया, उनसे बड़ा पेट्रियोटिक कौन है? क्या बात. The fact that you are doing this podcast, क्यों कर रहा है तू? तेरे को कोई गारंटी नहीं है कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा. व्हाट आर यू डूइंग? पेट्रियोटिज्म ही तो है. अगर तुम लोग एम्प्लॉयमेंट दे रहा है 4 लोगों को, इडली वाला साइकिल पे इडली बेचता है ना, वो भी 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है. उधर एक बर्तन धो रहा है, 2 औरतें घर पे इडली बना रही है, कॉन्ट्रीब्यूट ही तो कर रहे ना. दिस इज पेट्रियोटिज्म. तो सबसे पहले तो पेट्रियोटिज्म को सही से समझते हैं. Every guy who's working and contributing
towards the development of the country by giving jobs, by working himself, by doing, are all patriotic. It's not that only the soldier is patriotic. वो भी अपना नौकरी कर रहा है. You know, so all of us are patriotic. Okay. Now comes that the corporate social responsibility, CSR. Okay. वापिस इसको इतना भारी बना दिया ना, and then corporate social responsibility not something that you can force onto somebody. फोर्स वाले वो टिपिकल, हाँ यार एक थोड़ा सा वो परसेंटेज दिखा दे CSR में तो अपने को टैक्स रिबेट मिलेगा. टैक्स रिबेट मिलने के लिए अपन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रूट्स पे जाता है. वो जिसको करने का है ना वो करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ टैक्स रिबेट. जिसको नहीं करने का है वो कुछ तो भी लूपहोल ढूंढ लेता है. ओके, इट गोज टू माई रूट्स. माई मदर 40 years back माई मदर इन द विलेज दैट वी वर स्टेइंग इन, वहां पे जो गांव की लड़कियां है ना, वो गांव की लड़कियों को शॉर्ट हैंड, तभी शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग होता था. टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड. तो हर सेक्रेटरी को शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग आना जरूरी था. सो माई मदर यूज्ड टू रन अ शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट. ओके, एंड वो गांव की लड़कियों को लेके आते थे. एंड गांव की लड़कियों के पास कभी कभी पैसा भी नहीं रहता था. शी यूज्ड टू से छोड़ ना पैसे, तू सीख ना, तू सीख. एंड देन शी यूज्ड टू टीच देम ग्रूमिंग. My mother is a very good-looking woman, right, and she carries herself very well and all. She used to teach them grooming. She used to give them tips on how to groom, how to carry yourself. Okay, how to speak right English, shorthand कैसा करने का, typing कैसे करने का. और वो लड़कियों को empower करके वो आज लड़कियां कोई मंत्रालय में, कोई इधर है, कोई बड़ा टाटा की सेक्रेटरी है, कोई क्या है. ओके, इधर they've gone all over. Okay, that time 40 years back वो भी तो CSR ही था. You know, so ये खून में जाता है फिर. You know, and when my company started, she said, boss, education में खर्चा कर. मेरे कंपनी में everybody from the office boy to the CEO gets an education allowance for his children. Okay. Education का मत सोच तू. Okay, they get an education allowance. Plus we have a foundation that runs purely on skill development for these youngsters. Okay, क्योंकि skill रहेगा तो वो बाहर जाके कुछ करेगा. Okay, एक कारपेंटर को, एक अच्छे कारपेंटर को एक दिहाड़ी जो बोलते हैं, वन शिफ्ट का 2,000 रुपया मिलता है. ओके, अब तू सोच. एंड ये लोग 2 शिफ्ट काम करता है. ओके, नाउ यू डू द मैथ. मतलब दिन का 4,000 रुपया कमाता है वो. अपार्ट फ्रॉम नाश्ता, खर्चा पानी, रहने का खर्चा, अपार्ट फ्रॉम दैट, तो मतलब वो उतना पैसा साफ लेके जाता है. लाख अ मंथ. अभी तुम मेरे को बता ना, इधर हीरानंदानी में इतना कॉल सेंटर है, सब लोग जो सिगरेट पीते रहते हैं शाम को नीचे. ओके, ऐसा गले में वो पट्टा डाल के, ओके, 50,000 पे, कोई 25,000 पे काम कर रहा है. क्या तो फैंसी एयर कंडीशन ऑफिस में काम कर रहा है. वो कारपेंटर बोलता है बस लाख रुपया कमा रहे हैं. ओके, सो स्किल इज द की. स्किल. मोदी जी और द गवर्नमेंट न्यू दिस एंड दे सेड, बॉस, स्किल्ड इंडिया मूवमेंट क्यों चालू किया वो लोग इतना. ओके, स्किल होना मांगता है लोगों के पास. ओके, so that is the thing, and this empowered youth then will create, अपने आप वो देश फिर वो अच्छा बन ही जाता है. आपने मोदी जी का बात किया. How do you look at your company 10 years from now and your business? How do you look at it? Sure. So I am extremely optimistic about India. Whether it is your business, ये कैमरामैन वाले का धंधा, सब लोग रॉक करने वाले हैं. Next 10 years क्या, even more than that. I'm extremely optimistic about it because everything is aligned. Okay, you see the amount of turbulence in the world, see the amount of volatility, see the amount of insecurity. It's a lot in the world. Okay, India comparatively is very stable. The government of India abhi वापस after the election comparatively stable. Okay, look at the youth. 50% of our population below 25. 50%. ये ऐसा पावर है ना जो किसी के पास नहीं है. The world is having aging population. उनका प्रॉब्लम ही अलग है. काम करने वाला नहीं है कोई. अपन सिर्फ यूथ को भी एक्सपोर्ट करेगा तभी भी इट इज ह्यूज. यू नो, सो एवरीथिंग इज अलाइंड. ओके, द होल पॉइंट इज दैट ये जो स्ट्रेंथ है ना अपना, अगर अपन थोड़ा भी कंप्लेसेंट हो गया ना, इधर थोड़ा कॉशन है. यू कैन नॉट बिकम कंप्लेसेंट ऑल्सो. नहीं, अपन तो ग्रेट है, अपन तो एनीवे बड़ा बनने वाले अभी. ओके, डोंट रिलैक्स. कंप्लेसेंसी, बिकॉज अगर पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया आ रहा है अभी पूरे वर्ल्ड से, तो क्या हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं क्या, वो लेवल पे जा रहे हैं क्या. So that's when I upgraded my factory. I made a fully automated, completely all Felder machines, German machines and software driven machines, so that make in India technology उनका लेंगे. Okay, लेकिन make in India to the standard of the world. You know, so you can't get complacent. Okay, the youth can't get complacent. Okay,
they will have to constantly they have so much information, they have mobile, they have this that, okay, काम आने वाला है बहुत सारा, you have to constantly upgrade. The biggest fear is that there is unfortunately so much hatred being spread around. That hatred cannot, it will completely destroy us. Okay, they have to be very careful of what they are consuming. Okay, कि वो एकदम ही radicalized thoughts सुन रहे क्या, okay, because ये destruction की तरफ ही जाएगा. Okay, and I think वो जानबूझ के डाला भी जा रहा है. जिसको जो करना है वो कर रहा है. तेरे को तो अक्ल दिया है ना. हाँ. तू क्या कंज्यूम, अब वो वापस जा ना तू उस कंजम्पशन पे कि मेरा ये गोल क्या है, अच्छा ये गोल को अचीव करने को मेरे को क्या सीखने का है, फिर उसके बाद मेरे को क्या करने का है, फिर उसके बाद मेरे को क्या करने का है. इस पे जब तू फोकस रहेगा तो ये फालतूगिरी सुनेगा भी नहीं कि बस क्या बकबक कर रहा है. मेरे ऑफिस में अगर लेट्स से व्हेन आई एम इन अ लो फेज ऑफ माय बिजनेस, ओके, और सब कुछ है, तो मेरा अकाउंटेंट ऐसा मुंह ऐसा करके आएगा कि सर पैसा नहीं है बैंक में सर, तो मैं उसको बोलता हूँ अच्छा इधर तेरे पास सोल्यूशन है. नहीं सर आप सोचो कुछ. तो मैं सोच रहा हूँ ना, तो निकल. ये ऐसा नेगेटिविटी ना बहुत आसान होता है. अच्छा मैं उसको बिठा भी सकता हूँ, हाँ यार क्या करने का यार, वाट लगा हुआ है, तो क्या मजा आता है, तू भी नेगेटिव मैं भी नेगेटिव. ओके, नेगेटिविटी इज वेरी नेचुरल, बीइंग पॉजिटिव इज अननेचुरल. यस. तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई तू बाहर जा, मेरे को भी पता है बैंक में पैसा नहीं है, मैं सोच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तेरे पास कुछ आइडिया है तो मस्त अंदर आ. ओके, सो द यूथ हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल. ओके, एंड जिस दिन ये यूथ, एंड दैट इज वेयर कमलाक्ष आई फील कि तू जो पॉडकास्ट कर रहा है ना, दिस इज नथिंग लेस देन नेशन बिल्डिंग. क्योंकि ये इंफॉर्मेशन केओस के अंदर, ओके, तू थोड़ा तो डायरेक्शन दे रहा है ना, कोशिश तो कर रहा है, जिसको उठाने का उठा लेगा, जिसको नहीं उठाने का वो कोई तो भी आइटम नंबर देखेगा. You know, so I think that's so you drive the youth in such a way. और इनके पास टेक्नोलॉजी है और आजकल AI भी है. So how do you incorporate AI technology into your business regularly? Sure. So whether it is me or whether it is anybody, whether it is this cameraman, whether it is the sound guy, whether it is the editing guy, okay, be very careful. AI तो कुछ नहीं है, इसके आगे अभी सुपर इंटेलिजेंस आ रहा है. अच्छा. Okay, super intelligence, which is going to be 10 times or I don't know 100 times more intelligent than Einstein is what they say. Okay. And in every field. In every field. Okay. तो पॉइंट ये है कि अपन डर जाए या कुछ करे इसके बारे में. मैं बहुत सिंपल बोलता हूँ कि यार अपना लेना, यार अपना ले. मेरा बिजनेस को मैं चल देखता हूँ. ओके, मेरे बिजनेस में ये टूल आया, ये टूल आया, ये टूल आया. आई वॉज एट अ कॉन्फ्रेंस जहाँ पे एक अंग्रेज बैठा था यूएस में. ओके, बड़े स्क्रीन पे, आई डू 5 स्टार होटल इंटीरियर्स, तो वो बड़े स्क्रीन पे उसने ऐसा क्लाइंट सामने ऑडियंस को उठाया, बोला हाँ क्या होटल तुमको डिजाइन करने का. तो एक ऑडियंस ने बोला सर हमको लोनावला में ना रिजॉर्ट बनाने का. ओके, लोनावला रिजॉर्ट. देन उसने बोला अच्छा क्या डिजाइन स्टाइल चाहिए. तो उन्होंने बोला नहीं हमको एकदम ना ट्रॉपिकल स्टाइल का डिजाइन चाहिए. अच्छा ट्रॉपिकल स्टाइल, तुम्हारा रूम साइज क्या चाहिए, तुमको कितना रूम चाहिए. अच्छा किसी ने बोला 100 रूम एंड अप्रॉक्सीमेटली 350 स्क्वायर फुट का एक रूम. अच्छा ठक 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 ठक. ओके ठक. He said okay wait and watch the fun. Okay, and tung within 9 seconds to 10 seconds there were 15 options on the screen of that hotel, with interiors, with design, with materials, with this. Okay, mid journey करके ये सॉफ्टवेयर है जो अलग लेवल पे जा रहा है. ये तो 5 साल पहले तो सोच भी नहीं सकते. एक आदमी एक डिजाइन बनाने के लिए probably takes about what? हाँ, my father was a draftsman. Okay, एक शीट ड्राइंग का शीट बनाने के लिए 2 या 3 दिन लेता था. हाँ, उसके बाद वो पोस्ट में डालते थे, फिर पोस्ट वाला वो उसको 5 दिन में उधर पहुंचाएगा, फिर वो उधर स्टडी करेगा, फिर उसमें वो करेक्शन देगा, फिर वो पोस्ट से वापस भेजेगा 5 दिन में, फिर ये इधर चेंजेस करेंगे एंड फाइनल ड्राइंग. 15 दिन लगता है एक ड्राइंग बनाने को. ओके, अभी एक दिन में 15 ड्राइंग बनता है एंड इट इज गोइंग टू अनदर लेवल. सो व्हाट यू डू इज दैट यू एम्ब्रेस इट. तो मैं बोला अच्छा अपने बिजनेस में ये सब टूल्स आ रहा है, चल यार मेरे यहाँ पे सरफराज करके एक लड़का है, चल सरफराज यार नया वो सॉफ्टवेयर लेके आ, ये लेके आ, चल ट्रायल करते हैं, ये ट्रायल करते हैं, वो ट्रायल करते हैं. आई यूज इट टू इंक्रीज माई प्रोडक्टिविटी, आई यूज इट टू इंक्रीज माई स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशंस, माई वर्किंग्स. ओके, आई यूज इट टू गिव मोर ऑप्शंस टू माई क्लाइंट्स. ओके, उसके लिए भी अच्छा है ना. ओके, सो आई यूज इट टू माई एडवांटेज. Okay, there is even for art there is this software called ZBrush. Okay, where these amazing young boys sitting somewhere in the corner of India are using that software to create. अगर मैंने बोला कि एक रुद्र अवतार में शंकर बना मेरे को,
Okay, I saw must, beautiful, amazing. They make and send. So embrace it. You can't run away from it, you know. And yeah. So, Embrace, apna lo. हाँ, That's we अपना- already using it. Like yes. with so many businesses under you, how do you maintain your work life balance? कैसे handle कर लेते आप? Okay. So again यहाँ पे थोड़ा it depends on where you are in life. Okay, मतलब young लोग अगर जो people who are hustling in life, okay, वो लोग work life balance का अगर बात करना चालू करेगा ना, तो ना तो work रहेगा, okay, ना life रहेगा. So they have to be very careful. Okay, it all depends on how you are managing your time. Okay, time management का मैं एक simple चीज पूछता हूँ ना. You are also handling so many businesses. Okay, what is the cost of your time per hour? कभी सोचा है इसके बारे में? Per hour कमलाक्ष का वैल्यू क्या है टाइम का? Not exactly, but Yeah, I know. So simple फार्मूला में अगर दूं तो तेरा जो टर्नओवर है उसको डिवाइड कर ले बाय 2000 बिकॉज 2000 आवर्स इन अ ईयर यू वर्क. ओके, जिसको और थोड़ा हार्ड वर्क करना होता है वो शायद 2500 आवर्स, बट लेट अस कंसीडर 2000 आवर्स इन अ ईयर यू वर्क. तो जो तेरा टर्नओवर है उसको डिवाइड कर बाय 2000 आवर्स, वो तेरे को पता चलेगा तेरा पर घंटे का क्या टाइम है, Value क्या वैल्यू है. अच्छा, उसके आगे जाने का रहता है कि मेरे को वैल्यूएशन, मेरा कंपनी का वैल्यूएशन क्या है आज की तारीख में, उसको मैं जब 2000 से डिवाइड करता हूँ तो उधर तेरा वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ द वैल्यूएशन आता है. एंड मेरा विजन क्या है, मेरे को किधर लेके जाने का है, उस वैल्यू को डिवाइड बाय 2000 करेगा तो तेरे को उधर तेरा विजन का वैल्यू पता चलेगा. सो इफ आई डू इवन बेसिक मैथ राइट नाउ, तो मेरा आज की तारीख में जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द करंट रेवेन्यू, ओके, टाइम का वैल्यू है. ओके, मेरा वैल्यूएशन के हिसाब से व्हेन यू नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर टाइम, विल यू वेस्ट इट? no, not at यू all. विल नॉट. ओके, यू विल बी लाइक बॉस, क्लाइंट भी लेट आ रहा है तो बॉस टाइम खराब कर रहा है सर. ओके, टाइम दिया था ना, मैं पहुंचा ना. ओके, you will be very very conscious about what you're doing. Every meeting you will finish a meeting कि बॉस मैं मीटिंग में जा क्यों रहा हूँ, उसका मैंने रिजल्ट लाया क्या, चल मीटिंग क्लोज, फालतू का क्या बात करने का. सो एवरीथिंग विल बी रिजल्ट ओरिएंटेड. तू किसी को भी मिलने जा रहा है ना, मैं क्यों मिलने, पहले तो क्लियर करने का मैं क्यों मिलने जा रहा हूँ, वो कितना टाइम मैं बैठूंगा, क्योंकि क्या है, कोई मीटिंग का कोई अंत ही नहीं रहता है. कभी कभी मीटिंग ऐसा 2 घंटा चल रहा है, चाय आ रही है, पकोड़े आ रहे हैं, ये आ रहे, अरे क्या, मैं वो रास्ते पे देखता हूँ लोग एक्सीडेंट होता है तो पब्लिक एक तो जमा होके देख रहा है. भैया तेरा वैल्यू क्या है टाइम का, तू देख रहा है. अच्छा, वो मर्सिडीज वाला झगड़ रहा है रिक्शा वाले के साथ, अरे तेरा वैल्यू क्या है टाइम का. आई सी बिजनेस ओनर्स, वो पंचिंग मशीन रहता है ना एंट्री पे, उस पे ध्यान, अरे तू लेट आया, इसका पगार काट, ये कर वो कर. अरे तू किधर ध्यान दे रहा है, तेरा धंधे पे स्ट्रैटेजी पे कौन ध्यान दे रहा है, तू क्या कर रहा है तेरे टाइम के साथ. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड देन यू हैव टू सेग्रीगेट इट कि दिस इज फॉर माई प्रोफेशनल, दिस इज फॉर माई हेल्थ, दिस इज फॉर माई फैमिली. वो फैमिली टाइम में नो एडल्ट्रेशन, बस फैमिली टाइम है. क्यों? क्योंकि उधर मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है. अपन मोबाइल यूज करते थे, खट फिर रात को चार्जिंग के लिए रखते. दैट फैमिली टाइम, दैट फ्रेंड्स टाइम विद फ्रेंड्स, यू नो, आई ऑलवेज फील कि द रिच पीपल आर ऑलवेज अवेलेबल. If you ask Ratan Tata, ask for an appointment that I want to meet you, and because I had the opportunity of doing one of his houses, Crane Bungalow. Okay, if you tell him I want to meet you for 15 minutes, okay, he will say okay, get in touch with my secretary. Secretary will say 26 तारीख को 11:15 to 11:30 तेरा slot है. अब वो slot में तेरे को जो बोलने का है, जो तेरे को प्रेजेंट करने का है, प्रेजेंट कर. If he is interested, if he feels that नहीं यार अच्छा बात कर रहा है ये, he'll call up his secretary, just add a 15-minute slot. वो वेटरनरी हॉस्पिटल भी खोल रहा है, CSR के लिए भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है. माई फ्रेंड्स ऑल्सो, विथ माई फ्रेंड्स ऑल्सो, दे टेल मी, अरे रोमेल यार चल ना, सब फ्रेंड्स आ रहे हैं, यूएस से भी लोग आ रहे हैं, तो एक काम करते हैं, लोनावाला मिलते हैं ना अपन. मैं बोला हाँ ठीक है, डेट बता, टाइम बता, मैं पहुंच जाएगा. बाकी लोग सोचते नहीं मेरा शिफ्ट है, मेरे को बॉस छुट्टी नहीं देगा, ये नहीं देगा. तुम पैसे से क्या हो रहा है कि बॉस टाइम, यू आर बिकमिंग फ्री, you've got freedom, and with that freedom you buy time. So the day you start respecting time na, then this work life balance ये सब वो अपने आप हो जाता है. We spoke about money, so how much money is important, and does money give you happiness? कितना पैसा होना चाहिए? आस्था चैनल लगाएगा ना तो बहुत सारा बाबा लोग मिलता है. वो सब मोह माया है,
सब मोह माया है. Okay, I respect them. Okay, because you learn a lot from them. उसका वो बाबा का नेटवर्क देख, 2000 करोड़, 20,000 करोड़ नेटवर्क था बाबा लोग का नेटवर्क. और तेरे को क्या बोल रहा है, मोह माया. सो थोड़ा यूथ को मैं बोलता हूँ बस थोड़ा सोच. ओके, तू ट्रेन में लटक रहा है, ओके, ऐसा बाहर लटक के तू जा रहा है और उधर से बाजू से फरारी जा रहा है, मजा नहीं है रे फरारी में. अरे द डे आई बॉट माई फर्स्ट स्पोर्ट्स बाइक आई वाज शॉक्ड. वो 0 to 100 in 2.8 seconds. वो जो पावर हाथ में आता है ना, एंड दैट थ्रिल, दैट एड्रेनलिन, ओके, इज जस्ट अनबिलीवेबल. ओके, सो ये मोह माया, ये सब कि पैसा जरूरत नहीं है, ओके, नहीं, आई हैव बीन ऑन बोथ साइड्स. ओके, आई नो द फन दैट दिस साइड हैज एंड द फन दैट दैट साइड हैज. ओके, रतन टाटा ने बहुत मस्त बोला था कि मनी डजंट गिव यू हैप्पीनेस, बट मेक श्योर that you have millions in your bank before a stupid idea like that comes to your mind. Okay, तो ये सब ना, and then it again goes back to spirituality. बस लक्ष्मी का इज्जत करना. तू क्यों बोल रहा है कि पैसा कुछ नहीं है, मुक्ति चाहिए, तो ले ले मुक्ति. लक्ष्मी तो खड़ी है, वो बोल रही है बस कमलाक्ष को नहीं चाहिए तो मैं तो उसके पास जाएगी, मैं उसके पास जाएगी. इज्जत करना मेरी. You play any sport? Yes. I used to play football a lot. अभी तो टेबल टेनिस खेल लेता हूँ जिधर मिला. तो फुटबॉल खेलते वक्त गोल मारने के बाद जो एक एड्रेनलिन रश आता है, जो थ्रिल आता है, वो अलग है. यू कांट एक्सप्लेन इट, राइट. तो रोनाल्डो जब खेलता है तो वो उस रश के लिए खेलता है, और उधर 1,00,000 लोग टिकट निकाल के आए हुए हैं शो देखने के लिए. एंड देन वो बोलेगा क्या चूतिया है रोनाल्डो, कैसा खेलता है यार. तू ऐसा पॉपकॉर्न का टब लिया है, बियर है हाथ में तेरे, और रोनाल्डो चूतिया. ओके, सो ये स्टैंडर्ड है. ओके, तो दो टाइप का लोग होता है. एक जो बॉक्सिंग रिंग देखते हैं अपन, रिंग के अंदर दो लोग बॉक्सिंग कर रहा है, खून निकल रहा है, गिर रहा है, मार खा रहा है, और बाकी जो ताली बजा रहा है. पब्लिक बैठा है उधर ऑडियंस में, ताली बजा रहा है. ओके, सो यूजुअली पीपल लाइक अस आर पीपल इन द रिंग. तू मेरे को बाहर बोला कि यार मैं रिटायर नहीं होने वाला हूं. क्यों? क्योंकि तेरे को रिंग में रहने का है. मैं मार खाएगा, मैं गिरेगा, खून निकलेगा, बट मैं वापस ट्रेन करेगा, मैं वापस जाएगा और मैं जीतेगा. ये एड्रेनलिन रश है. मेरे को रिंग में रहने का मजा है. वो विराट कोहली ने ये सोच के वर्ल्ड कप नहीं जीता कि मेरे को बहुत सारा भी एंडोर्समेंट मिलेगा, मेरे को बहुत पैसा कमाने का. नहीं, आई लव दैट ब्लडी गेम. मैं वो गेम के लिए खेल रहा है. मैं जीतू या हारू, आई वॉन्ट टू एंजॉय इट. बाकी सब बाय प्रोडक्ट है. सो द डे यू स्टार्ट प्लेइंग इन द रिंग एंड वांट टू बी इन द रिंग, ये पैसा वैसा आते रहता है. बाकी पब्लिक बोलेगा क्यों इतना मेहनत कर रहा है, पैसा तो है तेरे पास, घर है, गाड़ी है, क्यों तू कर रहा है. अरे यार मेरे को मजा आ रहा है, मेरे को रिंग में खेलने को मजा आता है, मेरे को वो एड्रेनलिन रश में मजा आता है. तो ये पैसा वैसा के लिए थोड़ी खेलता है मैं. सो ये कनेक्शन जिस दिन तेरे को समझ में आएगा ना, दैट देन यू विल अंडरस्टैंड वेदर मनी इज इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट. That pleasure, that adrenaline rush is priceless. Romil, your talks are so inspiring, and we have got so much of good things. Yeah. What is your success mantra? Okay, I think तू पीछे का क्वेश्चन सब देख लेगा तो उसमें तेरे को सब मिलेगा, एकदम क्लियरली मिलेगा कि भाई देख मेरे पास कुछ नहीं है आज. ओके, मेरे को भगवान ने क्या दिया पहले तो सोच. भगवान ने कुछ तो क्वालिटी दिया रहेगा तेरे को, बात करने का क्वालिटी. अपन बहुत सारे बच्चे देखते हैं ना, अरे हाथ नुसता बड़बड़ कर दो. अरे मस्त क्वालिटी है, आरजे बनेगा ये, हाँ, मीडिया में जाएगा ये. ओके, हात नुसता बघून असं तो काहीतरी बघत असतो आणि मग विचित्र चित्र काढत असतो. अरे ठीक है, देख तेरे को सब जगह तेरे को कुछ ना कुछ दिख रहा है. तो पहला तो क्या है, मेरे को क्या दिया भगवान ने, क्या दिया, एक्सेप्ट कर उसको. ओके, फिर उसके बाद कम्स दैट गट्स कि उस लाइन में उतर और बैटिंग चालू कर. 100% उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पीपल फील दैट जब तक 100% मेरे पास 100% सिंड्रोम बोलते हैं उसको. कि जब तक 100% परफेक्ट नहीं रहेगा ना, मैं पॉडकास्ट नहीं चालू करेगा. लाइट परफेक्ट रहना मांगता है, कैमरा परफेक्ट रहना मांगता है, मेरा गेस्ट परफेक्ट रहना मांगता है, मेरा क्वेश्चन नहीं. तेरा एक अच्छा इंटेंट था, मेरे को पॉडकास्ट करने का है, मेरे को इंस्पायर करने का, ये करने का, कर ना, चालू तो कर. पहला इंटरव्यू, दूसरा इंटरव्यू, तीसरे इंटरव्यू में चैंपियन बन जाएगा. बाय नाउ यू हैव बिकम अ चैंपियन, यू हैव ऑलरेडी डन 15 इंटरव्यूज. ऑन द वे यू विल ओके, तो हो गया दूसरा.
उतर गया गेम में, ओके, एंजॉय किया, अब जीनियस बन। बाय द 20th इंटरव्यू जीनियस, तेरे को यू विल बी लाइक अरे क्या कमलक्ष अलग लेवल पे लेके जाता है। सिमिलरली इन योर मोटिवेशनल स्पीच, सिमिलरली इन योर प्लानिंग, वेडिंग प्लानिंग, कॉर्पोरेट इवेंट्स, ओके, सब। तो ये आ गया, ओके, एंड देन कॉन्स्टेंटली कीप रियलाइनिंग द गोल्स, क्योंकि इसमें मार भी खाने वाला है तो जिस दिन मार खाएगा बॉस मेरे को किधर जाने का था, ठीक है चल रियलाइन किया, ये किया, चल निकल पड़े, यू नो, बस ये सब। एंड देन रिस्पेक्ट लक्ष्मी, रिस्पेक्ट सरस्वती, रिस्पेक्ट काली। अपना तेरा लॉयर्स का ग्रुप भी मजबूत होना चाहिए। You have to have good lawyers on board. Okay, you have to have firewalls. Okay, so that Mahakali ko accept, and then keep your Mahamaheshwari, that law of attraction, constantly on. Okay, and most important, don't forget to have fun. मजा करने का, ऐश, enjoy it. I've seen your parties. आप तो full to मजा करते हैं. Exactly. So that's the way. So कितने सारी बहुत अच्छी बातें की हमने. What is the kind of legacy you would like to leave behind? You're already just building it up. It's stacking up. What is the kind of legacy would you like to? Yeah. So again, these are heavy words. But एक फटका मेरे को लगा था जब भी कोविड में. Okay. So COVID, unfortunately, both me and Surinder got infected at the same time. Okay. And it was bad. Okay. And God, by the grace of God, we recovered. And then after we recovered, we realized that boss, अगर अपन दोनों को कुछ हो गया रहता तो क्या होता है, ये बड़ा जो इतना कंपनी खड़ा किया इसका क्या होएगा, इतना जो वर्टिकल्स खड़ा किया है, ये किया है, क्या होता उसका। एंड इट वाज अ रियलिटी चेक फॉर अस, थप्पड़ लग गया था। तो फिर हमने उसके बाद एकदम स्ट्रक्चर करना चालू किया, एकदम जबरदस्त। ओके, तो रीअलाइन भी किया, रीसेट आवर सेल्स आल्सो, एंड विद इन 1 year वी बैक इन एक्शन, बैक 3 times, 3x बैक। ओके, बट द पॉइंट इज कि हमने वी पिक्ड the good leaders in our company, okay, groomed them further, okay, so that they further groom more people, okay, and we made our operations completely independent, okay, completely independent. अभी now मैं इधर बैठा है, मेरे को एक भी कॉल नहीं आएगा, मैं ऐसे 3 दिन का छुट्टी भी मारेगा, मेरे को कोई कॉल नहीं करेगा, बिकॉज इवेंचुअली द क्लाइंट नोज किसको कॉल करना है। एंड एनीवे रोमेल का काम कुछ और है, वो करके निकल गया। अभी बाकी नाउ सुरेंद्र एंड टीम टेक्स ओवर, ओके, देयर आर पीपल फॉर डिफरेंट थिंग्स, इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दिस हैपेंड इन कोविड। अब ये हो गया, अब तो इसको लेगेसी बोलता है या जो भी बोलता है, ये ठीक है, ये चलेगा अभी। ओके, नाउ द पॉइंट इज कि अपना जो ईगो होता है ना, अपना ईगो ये सोचता है कि यार मैं तो दुनिया बदलेगा मेरे को दुनिया बदलने का है। तो वेदर इट वाज गौतम बुद्धा, वेदर इट वाज शिवाजी, कोई भी ना दुनिया बदलने के लिए नहीं आया था। गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन अ नाइस फैमिली, ही वाज वेरी पेन्ड बाय कि मेरे को रियलिटी ढूंढने का है कि क्या है ये सब। तो वो अपना एक जर्नी पे निकल गए, and then he sat below the people tree, whatever enlightenment he got, and then he realized that nothing is constant, everything constantly keep changing. Beautiful thoughts he had. उसके बाद he never said मेरा पुतला बनाओ और मेरा पूजा करो। वो अपना मस्त, he sang his beautiful song and left. You are inspired by Shivaji Maharaj. Shivaji Maharaj, I am super inspired. Okay, I do the role of Shivaji Maharaj and stuff like that. I am super inspired because of the simple fact कि when Mughals were so large in number and almost पूरा इंडिया ऑक्यूपाई कर लिया था, तभी एक बच्चा सोचता है कि नहीं यार मेरे को नहीं रहने का ऐसा, मेरे को नहीं हजम होता है ये, आई डोंट वांट टू बी अ स्लेव, आई डोंट वांट टू जी हजूरी नहीं करने का मेरे को। ये एक लड़का सोचता है। अब कन्विक्शन, उसके बाद स्ट्रैटेजी, उसके बाद उसने पहले तो उसने सोचा कि महाराज ने सोचा कि मेरे को नहीं हजम होता, अब मैं क्या करेगा, फिर एक्शन प्लान बनाया, फिर सिमिलर थिंकिंग लोग साथ में आए कि नहीं, आई ऑल्सो एग्री कि मेरे को भी नहीं चलता है। ओके, दुनिया बदलने के लिए नहीं निकले थे वो, मेरे को नहीं अच्छा लगता है। दुनिया को अच्छा लगे, दुनिया को नहीं अच्छा, दुनिया को चल रहा था इसलिए तो इतना साल गुलामी किया ना, दुनिया ने तो कुछ बोला नहीं, मेरे को नहीं चलेगा तो मेरे को बदलने का। ओके, सिंपल। तो उसने बोला कि हाँ मैं बदलेगा, एंड he changed, and then today we know who Shivaji is, today we know who Gautam Buddha is. So bottom line is that they sang their own happy song and left. कर्म करो फल की चिंता मत करो, whatever, वो जिसको जितना जो बोलने का है बोलने दो। तेरा हैप्पी सॉन्ग क्या है तू ढूंढ, find what is your happy song,
कि तेरे को किस चीज में मजा आता है, तेरे को पॉडकास्ट में मजा आता है, तेरे को इसमें मजा आता है, तेरे को एक्टिंग करने का है, तेरे को ये करने का है, मेरे को आई वांट दैट हैप्पी वर्ल्ड, ओके, एंड एंजॉय इट. मत सोच लेगेसी वेगेसी का, मत सोच. वी आर पीपल इन द रिंग, आई टोल्ड यू, अपन रिंग में वाले लोग हैं. वी विल फाइट टू द लास्ट. जिस दिन अपन जाएंगे लोग बोलेंगे क्या फाइटर था यार लोग. तो इतना हैवी वो नहीं लेने का, स्ट्रेस नहीं लेने का, यू नो, कि अपना क्या लेगेसी रहेगा, लोग क्या सोचेंगे. एंजॉय इट. क्या बात है. We are almost there, but I don't know where to stop with you. Some final words for our aspirational listeners, Roman. First, I'll give you final words for you. Okay. Because this journey that you have taken is a very noble journey. Okay. Your intent is good. I know you for a very long time. Your heart is in the right place. And then जब तू सोचता है तो कर देता है. Okay, which is amazing. So like I was telling you कि इतना information का chaos है, इतना violence है, violence of information, violence in the minds, turbulence. Okay. उसमें इन दैट डार्कनेस तो एक ऐसा छोटा सा दिया जला रहा है कि भाई मैं थोड़ा लाइट दिखा रहा हूँ, थोड़ा ये 4 कदम चलना. ओके, इट्स अ वेरी नोबल कॉल. ओके, सो फर्स्टली congratulations to you, and keep it up. May God give you more strength to do it. Okay. Secondly, the fact that तू relatable guest लेके आ रहा है पॉडकास्ट पे, कि लोग सोच रहा है कि ये रोमेल तो चूतिया है लेकिन ये भी कर सकता है, इसने भी इतना बड़ा कंपनी खोला यार, तो मैं तो थोड़ा स्मार्ट है उससे, ओके, तो मैं भी कर सकता हूँ. तो ये रिलेटेबल हो गया. क्योंकि जो दूसरे बड़े पॉडकास्ट विच आई, बिकॉज आई आल्सो वॉच अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट, यू सी ऑल दिस बिग पॉडकास्ट ना, वो लोग पेडिग्री का बात करते हैं. ओके, कि वो यू नो like all of these founders and all, when they talk about this 5,000 crore company founder and this 10,000 crore company founder, oh you know I was at IIMs and then I went to the US and I was working with Google and then I was like very frustrated and I said I'll go back to India and I'll start my own company. ये लोग का पेडिग्री देख तू, ये लोग इंडिया का टॉप 1% का इंटेलिजेंट लोग है. ओके, IITs, IIM, स्टैनफोर्ड, ये यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी, वो लोग लेके आते हैं. एंड देन दे, या फिर कोई गेस्ट होता है जिसका पापा का ऑलरेडी बड़ा बिजनेस था, देन ही टुक टू अनदर लेवल एंड दिस एंड दैट. ओके, बट द काइंड ऑफ गेस्ट यू आर गेटिंग आर रिलेटेबल पीपल. थैंक यू. ठीक है ना. तो क्या है कि उनको होप दिखता है कि यार रोमेल कर सकता है, कमलाक्ष कर सकता है, तो अपन भी थोड़ा करते हैं ना यार, यू नो. सो दैट फॉर यू आई वुड से is my gratitude. Okay, and keep it up. Now talking about the younger generation. Okay, so younger generation, again I'm very very optimistic. Like I meet these younger people, I go to colleges to give talks, I do a lot of events and stuff like that. जो energy level है ना, ये लोग का अलग level पे. Okay, they have a lot of information because they have so much access to information. They are very smart, and they will make India a great place. Here again the word of caution is don't be just a consumer, or don't make your brain only a processor by consuming so much information, because you could get completely sucked into it, you could get confused, you would not know what you want to do in life. ये सब वो बड़े questions फिर चालू हो जाता है. Okay, to allow your time, get your distinct forte right. Okay, and in whatever field you are medicine, you are in media, you are in agriculture, you are anything, any field, look at the problem that field is facing in that point. Okay, and then use your smartness, your technology, your knowledge to find a solution to that problem, and then go all after it. Okay, automatically it will lead to some bigger thing, which will lead to success, which will lead to abundance. So ये basic सिर्फ word of caution है that don't just get consumed. Allow some time for your brain to now think and contemplate things. Okay, so that is there, and rest. Now talking about the country and this thing, so I'm extremely optimistic that we are going to be the Super 4. Okay, there is no other way. We are definitely doing it. You, I, and all of these youngsters together are going to do it together. Okay, so all the best to all the best to you first. All of best to all our listeners. Okay, God bless you. Jai Hind. Jai Hind, Jai Hind, Jai Maharashtra, and it's such a pleasure, sir. Thank you. You are a unique
जेंटलमैन, यू ऑलवेज इंस्पायर्ड मी. जब भी मिलता था एक आध दो लाइन में भी अरे बोला क्या बात बोली आपने, और उसमें उसको कहीं ना कहीं यूज करता था. आई यूज्ड टू से योर लाइंस टू अदर पीपल. यू आर एन इंस्पिरेशन. एंड as I said, आपने बोला legacy, you have a different way of putting legacy. I know things would be super from here on. You're very kind. Thank you so much. Thank you so much. All the best. Thank you. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर उसे लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और ज़रूर पक्का सब्सक्राइब कीजिए.